Hello everybody. I know you are here for the essay video, but before starting that, I would like to draw your attention by taking 30 seconds to the fact that on the coming of 9th of July, that is Sunday, we are coming up with a video or a lecture, whatsoever you call it, which is going to be of immense importance in your UPSC career. This is something that has never, please, never been talked about, nor by any toppers, nor by any coaching institutes, teachers, not even to the so-called YouTubers who tend or like claim to know this exam. इसकी बात नहीं हुई है इससे पहले, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी एक लिमिट तक ही पता था इसके पहले, लेकिन जस्ट लास्ट वीक और लाइक 10 days बिफोर वी स्टार्टेड समथिंग इन एन इनर सर्किल जिससे कुछ शॉकिंग फैक्ट्स, एक्चुअली में ये शॉकिंग है और एक्चुअली में ये रिवीलिंग चीज़ें हैं जो निकल के आई हैं. सो I really want you to see it, and if you understand that what is going on, and if you understand that this is important for your career, अगर आपको समझ में आती है वो चीज़, तो please it is your duty that you make it reach the masses as you did with the means masterclass 1 and as you did with our voices. Okay, अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगा. बस मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि this time we are here with a lot of authentic documents, a lot of authentic documents. ओके ठीक है, इतना ही है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द एसे वीडियो, अगेन देर आर 2 डिस्क्लेमर्स. आप भी बोलेंगे हर वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देने आ जाता है, बट क्या करें. तो पहली चीज़ ये है कि दिस विल बी अ लॉन्ग वीडियो एज इफ दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लॉन्ग वीडियो, बट ऑल्सो द फैक्ट बिकॉज वी हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, but it will be so detailed and so comprehensive that you will need not anything else to understand how to prepare the essay paper and to understand the minute details of it and even the macro details of it. So ये लंबी होगी लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ कवर्ड है, एंड आई प्रॉमिस यू दैट बोर नहीं हो गए आप. ठीक है. देन द सेकेंड डिस्क्लेमर इज दैट दिस वीडियो इज मिथ शैटरिंग. तो अगर आप स्टेटस को इस इंसान हो ना जो अपने मिथ में रहना, अपने बबल में रहना पसंद करता है, तो फिर ये शायद वीडियो आपके लिए ना हो. इसमें ना जितने मिथ्स हैं मार्केट में, जितने मिथ्स हैं ऐसे के बारे में, सब शटर होने वाले हैं, सब कुछ. ठीक है. तो मेरी आपसे बस यही दरखास्त है, यही इल्तिजा है कि अपनी एक नोटबुक लेके बैठिए, एक पेन लेके बैठिए, एंड लेट अस बिगिन द जर्नी. अ वेरी गुड मॉर्निंग. माय नेम इज सत्यम जैन. वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी. Today, in this particular session, we will be discussing with you the ultimate strategy, the most comprehensive strategy, and the most pinpointed strategy of the essay paper. These are the things that we'll be covering in this particular video. I'll just give you to them in brief so that you know what is the agenda of the video. Also, the timestamps for all of these things will be mentioned in the description. But again, my humble request would be to watch it entirely फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए हर एक चीज़ की. बहुत कुछ कवर करना है, जैसे मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे का सिलेबस एक्चुअली में क्या है, उसका मतलब क्या है, इस पेपर का कोर क्या है, व्हाट इज़ द कोर ऑफ दिस पेपर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस पेपर, व्हाट इज़ द यूपीएससीज डिमांड व्हेन इट कम्स विद द एसे पेपर. यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा है, क्यों है एसे का पेपर, है ना. हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक होगा ना. ऐसे लिखवा रहा है तो क्यों लिखवा रहा है, वाई इज देयर द एसे पेपर. Then the second important thing will be that you have to treat it as 2 different essays. I'll explain the meaning. Third is from where to derive the content and the resources. I'll show you my notes. I'll show you how I collected resources, how I collected a lot of sources. तो मैं दिखाऊंगा, and the PDF of these sources and resources can be found on Understand UPSC's Telegram channel. The description में जिसका लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके आप इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं. मैं अपने खुद के लिखे हुए नोट्स डालने वाला हूँ, एंड 1-2 टॉपर्स के और अच्छे नोट्स हैं, मैं वो भी डालूंगा ताकि आपको हेल्प मिल जाए. Then there is something called the most important phenomena of essay. I'll be discussing what this most important phenomena is. It is actually the most important phenomena. Then I'll tell you how to choose a particular topic in the essay. Then I'll tell you how to brainstorm an essay, जो कि बहुत important है to generate a lot of dimensions and to understand the depth of a topic. Then we'll talk about the 4-5 stages of an essay, if I can say so, or parts of an essay, which will start from introduction. We'll talk about what is an introduction, how to write one, what are the types of it, and what is the length, etc., etc. All the questions regarding introduction. How to switch from introduction to body. That is a major question that a lot of students are facing. How to switch? What is the post intro thing?
I'll show you with examples and I'll show you with screenshots how to do it. Then we'll talk about the body, and there are a lot of things that we have to talk here, so I'll be covering all of this. What is dimension, subdimension, length, paragraph, examples, diversify कैसे करना है, words कितने यूज़ करने हैं, कैसे unique ways है present करने के अपने essay को. So we'll be discussing about all of that. Then I'll be discussing some frameworks and some flows of an, like how to flow an essay, and also how to improve the presentation. Then this is something very important, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एक टाइम था जब टॉपर्स ये बोल जाते थे कि अपने ऐसे को डाइवर्सिफाई करने के लिए पेस्टल अप्रोच को यूज़ करो, या अलग अलग जो भी उन्होंने लोगों ने नाम दिए हैं. बट दिस माइट लिमिट इट सेल्फ टू जीएस. वैसे तो जीएस में भी ज़्यादा काम करता नहीं है, बट स्टिल जीएस में कुछ एक्सटेंट तक काम कर सकते हैं फ्रेमवर्क्स, लेकिन इन ऐसे दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट वर्किंग. सो वॉट इज़ वर्किंग दीज डेज? इफ़ यू हैव टू रियली स्कोर गुड इन द एसे, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस. तो एनालिसिस करते कैसे हैं? मैं सिर्फ ये नहीं बताऊँगा आपको कि एनालिसिस कर लीजिए, मैं बताऊँगा कि करते कैसे हैं. ठीक है. देन विल बी टॉकिंग अबाउट द पेनल्टीमेट कंक्लूजन. देन विल बी टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन. विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट सॉल्यूशंस एंड व्हाट वर फेवर्स टू बी गिवन इन अ पर्टिकुलर एसे, राइट. एंड देन जो लोग यहाँ तक सर्वाइव कर जाएंगे, जो लोग सीरियस हैं इस चीज़ को लेके, उनके लिए लास्ट में आई विल बी शोइंग यू, आई विल बी एक्सप्लोरिंग विद यू अ वेरी टफ टॉपिक. मैं आपको लिखना नहीं बताऊँगा, मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग शायद ना बताऊं, जो भी आप उसको बोलेंगे, बट मेरे हिसाब से दिस इज एक्सप्लोरिंग. सो वील एक्सप्लोर अ वेरी 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 टफ टॉपिक टुगेदर. यहाँ पे आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे फियर्स जो हैं वो एकदम शेड होने वाले हैं, एकदम कनकर हो जाने वाले हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब चीज़ें एक बार सुने बैठ के, एंड देन विल मूव अहेड विद इट. ठीक है, डन, अंडरस्टूड. कैन वी मूव फॉरवर्ड? चलिए, तो यहाँ से ये वीडियो शुरू होते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड नाउ. सो दिस इज पेपर 1. पेपर 1 के नाम से होता है क्योंकि सबसे पहले दिन होता है द एसे पेपर. ये यूपीएससी ने इसका सिलेबस दिया. लेट अस अंडरस्टैंड द सिलेबस. कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स. ऑफ कोर्स यूपीएससी वांट्स अस टू राइट एसेज ऑन 2 टॉपिक्स, सो मल्टीपल टॉपिक्स. फेयर इनफ, इसमें कुछ समझने का नहीं है. दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे. फर्स्ट थिंग दैट द यूपीएससी has mentioned is expected to keep closely to the subject of the essay. Okay, to arrange their ideas in an orderly fashion, to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. Okay, तो इसके बाद की 2 टॉपिक पे ऐसे लिखने हैं. हमारे पास 5 चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वॉट इज इट? इट इज कीपिंग क्लोजली to the subject of the essay. Why is it that important? It is important because if you do not keep closely to the topic, you end up writing a different essay. It is like आपसे पूछा गया है गाय के बारे में और आप लिखाओ शेर के बारे में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, चाहे आपने कितना भी अच्छा शेर को डिस्क्राइब किया हो. अब ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. मेरे 10th क्लास में क्या हुआ, एक ऐसे आया, मुझे ना हमेशा याद रहता है, और क्योंकि मेरे बहुत गंदे मार्क्स आ गए थे एकदम से इंग्लिश में, अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल मेरे लिए, क्योंकि इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, जस्ट बिकॉज आई मिस इंटरप्रेटेड एन एसे. ओके, तो देखिए कि किस तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है. 10th क्लास की बात है. आई स्टिल रिमेंबर, इंग्लिश का पेपर, फरवरी का महीना. मनी डज मोर हार्म देन गुड्स. ओके, ये टॉपिक आया था, आज भी जाके आप सर्च कर सकते हैं, 2012 आईसीएसई बोर्ड के 10th के पेपर में ये टॉपिक आया था. इस पे ऐसे लिखना था. ठीक है, अभी क्या हुआ कि मैंने जल्दबाजी में कह लीजिए, गलती करके कह लीजिए, ये जो गुड्स वर्ड है ना, इसको गुड पढ़ लिया. मनी डज मोर हार्म देन गुड. तो मैंने इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया कि जो पैसा है वो नुकसान ज़्यादा करता है, अच्छाई कम करता है. बट एक्चुअली में व्हाट दिस ऐसे वाज दैट मनी डज मोर हार्म देन गुड्स सामान. जो पैसा है वो सामान से भी ज़्यादा, मतलब गन से ज़्यादा में भी, या फिर तलवार से ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है. क्यों? क्योंकि आप लोगों के माइंड को पेनिट्रेट कर सकते हो ना पैसे से. तो बहुत सिंपल ऐसे था. लेकिन जस्ट बिकॉज आई इंटरप्रेटेड दिस एक वर्ड इनकरेक्टली, एक वर्ड को मैंने गलत पढ़ लिया, एंड आई एंडेड अप मेसिंग अप विद माई कंप्लीट ऐसे. और मुझे इंग्लिश के पेपर में कम मार्क्स मिले, काफ़ी कम मार्क्स मिले, लाइक 80 के अराउंड कुछ मिले, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. लेकिन दिस हैपेंस. तो मुझे 10th क्लास से सीख मिल गई थी कि भाई ऐसे का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो जब यूपीएससी कह रहा है ना कीप क्लोजली, तो मतलब इसके 2-3 चीज़ें हैं. पहली चीज़ क्या है कि आपको टॉपिक का सही इंटरप्रिटेशन आना चाहिए. बट क्या इसका ये मतलब है कि एक ही इंटरप्रिटेशन हो सकता है टॉपिक का? नहीं, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है. जब मैं लास्ट में आपसे कैसे डिस्कस करूंगा ना, आई विल शो यू दैट इन हाउ मेनी वेज एंड हाउ ब्रॉडली कैन अ टॉपिक बी इंटरप्रेटेड. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी.
क्रिएटिव लिबर्टी का यूपीएससी ध्यान रखता है, वो अलाउ करता है कि आप एक सर्टेन एक्सटेंट तक अपने इंटरप्रिटेशन को लेके जा सके, बट it should not be completely misinterpreted. For example, let us look at this particular topic that came in to 2022. Let us look at this topic. Forests are the best case studies for economic excellence. पहला टॉपिक है ये. अब जिन लोगों ने भी इसको फेस वैल्यू पे ले लिया, उनको क्या लगा कि यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर आपको इकोनॉमिक एक्सीलेंस अचीव करनी है, इफ यू वांट टू अचीव इकोनॉमिक एक्सीलेंस, व्हाट इज द बेस्ट थिंग इज दैट फॉरेस्ट्स. तो पीपल इंटरप्रेटेड इट एज एन एनवायरमेंट बेस्ड एसे, and whosoever did it scored in either 80s or 90s. राइट, तो इसको बोलते हैं मिस इंटरप्रिटेशन. तो अगर आपने ऐसे को मिस इंटरप्रेट कर लिया, नाउ प्लीज नोट डाउन, दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लंडर दैट पीपल डू. अगर आपने ऐसे को मिस इंटरप्रेट कर लिया तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है. तो आपको पहली बात क्या है कि इंटरप्रेट सही करना है, मिस इंटरप्रेट नहीं करना है. एंड सेकेंड, देन यू कैन हैव अ बिट ऑफ अ क्रिएटिव लिबर्टी टू इंटरप्रेट इट इन योर ओन वे. यहां पे सबसे बड़ी गलती जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं या फिर जो इवैल्यूएटर्स कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, वो ये है कि वो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट मार रहे हैं लोगों का. ये नहीं करना है आपको. यू डू नॉट हैव टू लेट दिस हैपन टू योर सेल्फ. वाई एम आई सेइंग सो? देयर वाज अ टॉपर रैंक 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, शायद 2 साल पहले की बात है, 2020 की बात है. 2020 में रैंक 4 थी, शायद किसी कोई इकोनॉमिक्स का बंदा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है अभी, बट या इन्होंने एन इवैल्यूएटर ऑफ आई गेस, कैसे नाम लिखना होता है, ऐसे ना, हाँ, तो ऐसे देयर वाज एन इवैल्यूएटर और इन्होंने गेव वेरी लेस मार्क्स, हम 40s और 50s में मार्क्स दे दिए पूरे पेपर में ही, एंड ऐसे बोल दिया कि आपने तो गलत से लिखा है, ये क्या है वो क्या है. एंड देन दिस पर्सन सेंट हिज शीट टू गौरव अग्रवाल सर, एंड ही वॉज काइंड इनफ टू लुक एट हिज शीट एंड टेल हिम कि नहीं, आपने बस, यू हैव बीन क्रिएटिव लिबरली, यू हैव बीन interpreting it in a different way, but that is not a wrong way. So what is the issue with the evaluators is that they tend to stick to a certain approach कि ये ऐसे का इंटरप्रिटेशन है, यहीं पे है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे. बट दिस इज नॉट हाउ यूपीएससी वर्क्स. यूपीएससी वॉन्ट्स क्रिएटिव पीपल हु कैन थिंक, हु कैन इंटरप्रेट थिंग्स इन देयर ओन वेज. तो इसलिए यूपीएससी एक सर्टेन एक्सटेंट तक क्रिएटिव लिबर्टी को अलाउ करता है, बस अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि आप टॉपिक को मिस इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो. समझ में आ गई चीज़? एंड यू, दिस इज हाउ यू विल कीप क्लोजली टू द एसे. इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा आगे चल के कि किस तरीके से आप करते हो ये चीज़. ओके, पहली चीज़ समझ में आ गई. नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड थिंग. अरे सॉरी, हाँ, ओके ओके. सो सेकंड इज टू अरेंज द आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन. नाउ व्हाट डज दिस मीन, टू अरेंज आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन? इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एक ऐसे का टॉपिक आप लिख रहे हैं, ठीक है, सी देयर इज अ सर्टेन ऑर्डर टू थिंग्स ना. अगर सपोज करिए आप एक वुमेन ओरिएंटेड आंसर लिखते हैं, तो उसमें आप लाइफ साइकिल अप्रोच का एक आपने नाम सुना होगा. ये क्या होती है लाइफ साइकिल अप्रोच? इसके अंदर हम ये करते हैं कि वी स्टार्ट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, then we move to adolescent age, then we move to the young age, then we move to the marriageable age, the working age, etc., and then we move till old age. तो इसका एक तरीका है ना कि पहले आप, अगर आप बचपन की बात कर रहे हैं तो उसके बाद आप जवानी की बात करेंगे, आप वर्किंग की बात करेंगे, तब आप ओल्ड एज की बात करेंगे. यू कैन नॉट डू दिस कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ से जंप कर रहे हैं. दिस विल बी रॉन्ग. तो इसी को बोलते हैं एक ऑर्डरली फैशन में आपके आइडियाज आने चाहिए. आपका ऐसे बढ़ के ये ना लगे कि मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि एक की बात दूसरी बात बोलना क्या चाह रहा है. जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड द टेम्पोरल फ्रेमवर्क, जैसे मैं इसकी बात भी करूंगा अभी थोड़ी देर में. इसमें क्या होता है कि पहले आप पास्ट की चीज़ों की बात करें, फिर आप प्रेजेंट की चीज़ों की बात करें, और फिर आप थोड़ा कुछ फ्यूचरिस्टिक विजन दें. जब आप पास्ट में भी चल रहे हैं तो आप एंशिएंट की बात करें, मिडाइवल की बात करें, मॉडर्न की बात करें. जब आप प्रेजेंट में चल रहे हैं तो इसमें आप मान लीजिए आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ें, तो उनका एक ऑर्डरली फैशन हो कि हाँ ठीक है, आप किस सीक्वेंस में एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड देन आप फ्यूचर के लिए कोई विजन दें. सो देयर इज एन ऑर्डर टू समथिंग, है ना. आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, विल हैव टू हैंडल अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वो ऑर्डरली फैशन में होने चाहिए ना, नहीं तो किसको कोई सेंस ही नहीं बनेगा उस पर्टिकुलर चीज़ का. तो ये सेकंड वाला पॉइंट आपको कह रहा है कि हैव योर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन, अरेंज करिए उनको, विच इज़ वेरी इजी. मैं सिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में भी कि कैसे करते हैं. थर्ड इज टू राइट कंसाइजली. कंसाइज राइटिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मेंट बाय राइटिंग कंसाइजली? इसका ये मतलब होता है कि यार आपने ना एक टॉपिक पकड़ लिया मान लो, और आप उसी को इतना खींच रहे हो, एक्सटेंडिंग इट टू सो मच ऑफ एक्सटेंट दैट द एग्जामिनर स्टार्ट्स टू गेट बोर्ड.
or that you have just explored this particular dimension in your essay, nothing else. तो ये ना तो सिर्फ आपके essay को मोनोटनस बना देगा, ऑल्सो ये आपके essay को क्या बना देगा, सिंगल डायमेंशन या फिर यूनिडायमेंशनल, है ना. वी डू नॉट वॉन्ट दैट, राइट. वी वॉन्ट अ गुड एनालिसिस. अ गुड एनालिसिस कम्स विद व्हेन यू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ डायमेंशंस, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू कंसाइजली राइट अ पर्टिकुलर डायमेंशन. पहले होता था कि 250 मार्क्स में एक ऐसे आता था, तो पीपल हैड अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ राइटिंग थिंग्स. बट नाउ तो एक पैराग्राफ में अगर आप एक डायमेंशन एक्सप्लोर कर रहे हो, तो फिर दूसरे पैराग्राफ में अगली डायमेंशन पे जाना चाहिए ना आपको. यू हैव टू चेंज आर्ग्यूमेंट. थर्ड चीज हो गई. ओके, लास्ट इज क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. क्या मतलब होता है इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन का? मतलब कि देखिए, अगर आपको कोई चीज कहनी है ना, इफ यू आर टू प्रूव अ पॉइंट, इफ यू हैव टू गिव एन आर्ग्यूमेंट, तो मेक इट इन अ डायरेक्ट मैनर. बहुत ज़्यादा चीज़ों के आसपास घूम के तब पॉइंट तक मत आइए, क्योंकि अगेन आपके पास उतना टाइम नहीं है. सो बी एग्जैक्ट इन योर एक्सप्रेशन. इफ यू आर सेइंग समथिंग, इट शुड बी क्लियरली विजिबल दैट यू वांट टू से इट. अगर आप बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट है वो हेल्प करता है, या फिर अगर आप बताना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, लेट्स सी दिस. सपोज करिए ये टॉपिक है, वेरी इजी टॉपिक, अ शिप इज सेफ, इज इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर. अब मान लीजिए सपोज करिए आप इसमें एक चीज बताना चाह रहे हैं कि शिप जो है वो हार्बर में सेफ क्यों है, वाई इज इट सेफ इन द हार्बर. तो अब इसमें जब आप ये बता रहे हैं तो बस यही बताइए. एग्जामिनर को मैं इसको ना बहुत, जब मैं एसएफजी में सेशंस लेता हूं तो मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं कि आपका जो एक पैराग्राफ है, वन पैराग्राफ ऑफ योर्स शुड एड्रेस टू वन पर्टिकुलर डायमेंशन. कि मैं इसको ना एक हेडिंग दे सकूं, देनी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर पैराग्राफ की हेडिंग होती है, लेकिन मैं इसमें से अगर पढ़ूं तो मैं एक चीज डिराइव कर सकूं, एक मीनिंग डिराइव कर सकूं, उसकी एक हेडिंग दे सकूं. दिस इज नोन एज एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, कि आप एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि आपको बोलना क्या है. समझ रहे हैं आप बात? लेट मी शो यू इफ आई हैव समथिंग विद मी. या चलिए, ये वाला एक ऐसे है जो मैंने लिखा है, लेट अस हैव अ लुक एट इट. जैसे द टॉपिक इज इट्स ईजी टू स्टैंड विद द क्राउड. ये मेरा खुद का ही लिखा हुआ ऐसे है. इट्स ईजी टू स्टैंड विद द क्राउड, इट टेक्स करेज टू स्टैंड अलोन. ओके, अब ये इसका इंट्रो है, इस पे बाद में आएंगे. देन लेट अस कम हियर, लेट अस सी दिस पर्टिकुलर, ये पैराग्राफ देखते हैं. ठीक है, मैं रैंडमली पैराग्राफ चूज कर रहा हूँ. लेट अस सी कि यहाँ से हमें कुछ समझ में आ रहा है क्या. Another reason in following herd mentality is that there are already well-drawn path and we just need to follow the footsteps of our predecessors. Why are Indians more inclined towards securing government jobs rather than innovating startups? Thus, we avoid the risky path and prefer the tested ones. But this behavior of always standing in the crowd comes with a risk. Okay? ये इस पूरे पैराग्राफ में मैंने किस चीज़ की बात करी है? मैंने स्टार्टिंग में जो चीज़ बताई सिर्फ उसी की बात करी है. What have I said? That we will be talking about the herd mentality, that we just walk upon well-drawn paths, that we just follow the footsteps of our predecessors. Then I related it to the Indian context, the same thing है ना, the same thing I related to the Indian context. Then I said कि इसकी वजह से हो क्या रहा है, that we tend to skip the risky behaviors, the risky path and prefer the tested ones. और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है. तो अब वो रिस्क क्या होगा वो अगले पैराग्राफ में डिस्कस होगा. सो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मैंने दो चीज़ों को मिलाया नहीं. आई डिडंट मिक्स टू थिंग्स अप. आई टोल्ड अबाउट द हर्ड मेंटेलिटी हियर एंड देन व्हेन आई वाज अबाउट टू टेल द रिस्क आई स्विच्ड द पैराग्राफ. सो नॉट डिड आई जस्ट kept my expression exact, I also made sure that it is effective by switching at the right time and maintaining the flow. ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैंने इसको किस तरीके से फिगर आउट किया, आई टीच दैट, बट आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज अंडरस्टैंडेबल. हाउ टू मेंटेन एन इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. तो अभी देखिए, इसमें पूरे में यूपीएससी ने कहीं ऐसा नहीं बोला है कि आपको बहुत ज़्यादा जीएस लिखना है, बहुत डेटा लिखना है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है. मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि पूरे के पूरे यूपीएससी में ना सिर्फ दो जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप एक्चुअली में अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकते हो. एक्चुअली में एक ऑब्वियसली द पर्सनैलिटी टेस्ट, वो तो है ही पर्सनैलिटी का टेस्ट. दूसरा ये ऐसे ही है क्योंकि और कहीं भी आपको इतना मौका नहीं मिलता है टू बी क्रिएटिव. आई कैन शो यू मार्कशीट्स ऑफ पीपल हु स्कोर वेरी बैड इन जीएस, मतलब 300 मार्क्स ही स्कोर कर रहे हैं, लेकिन दे एंड अप स्कोरिंग 140 एंड 150 इन एसए. तो अगर इनका जीएस इतना खराब है और जीएस की बेसिस पे एसए हो रहा होता तो फिर एसए में इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, राइट? तो
प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि जो एसए का पेपर है वो एक बहुत डिफरेंट पेपर है, जो आपकी क्रिएटिव लिबर्टी को मारने के लिए नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलें आगे। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फैक्ट दैट यू नीड टू ट्रीट योर एसे एज टू डिफरेंट essays. इससे मेरा क्या मतलब है? What do I mean by this? People often tend to mistake the fact that UPSC has given you 2 essays to write and both of them carry 125 marks each. So instead of seeing this paper as a 250 mark paper, start seeing it as 2 essays of 125 marks each. Generally, when people get 120 marks in essay, they tend to say that it is 60 plus 60. But in 99% of the cases, it is not the case. What happens is that you tend to write a good essay where you would have scored around 70 and another essay where you would have messed up something and you end up scoring 50 there. And if you are scoring, say for example 105, you might have scored 70 in one particular essay and you might have messed up so badly in the another essay that you end up scoring 35 in that particular essay. Now understand why some people end up scoring 70. I even saw a mark sheet of 55 marks given in the essay. This means that this particular person would have completely messed up both the essays, most probably. Maybe he would have been given 35 and 20 marks. बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट मिस इंटरप्रिटेशन हुआ होगा और यहाँ पे भी मिस इंटरप्रिटेशन हुआ होगा, बस ये है कि यहाँ पे इसने कुछ और डिमांड्स एड्रेस कर दी होंगी. इट माइट ऑल्सो बी 40 plus 15 because I have even seen 15 marks in a particular mark sheet in the particular year. So please start treating it as 2 essays of 125 marks each rather than thinking about an essay paper of 250 marks. This is very important because this will give you a perspective that you might write a good essay and a bad essay on the same day. Okay? तो जब तक आपके दोनों एसेज खत्म नहीं हो जाते, आपका बैटल खत्म नहीं हुआ, यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी फोकस एट द सेम टाइम, एंड दिस हैज टू बी ब्रॉट इन प्रैक्टिस. अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं कि आप 2 एसेज एक साथ लिख सकते हैं या 3 एसेज एक साथ लिख सकते हैं, इतना कैलिबर, इतना स्टैमिना बिल्ड करके नहीं जा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप सेकंड एसे लिखने जाएंगे अपना, यू विल बी ड्रेन्ड एंड दैट डज नॉट हेल्प. सो स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज 125 मार्क्स के 2 एसेज. अंडरस्टूड? क्लियर? दिस इज द सेकेंड थिंग. नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंटेंट एंड रिसोर्सेज. So, when it comes to content and resources, I often say that you do not require a lot of content and resources for essay. क्यों है ऐसा? क्योंकि मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि it is not a GS based paper where you need to show a lot of knowledge. It is not a paper where you need to value add with a lot of facts or data. It is mostly a paper of expression. How can you understand a topic and express yourself? It is mainly a paper of this particular thing. But still, if you want to prepare for essay, there are 2-3 ways of preparing for it. The first one is that you collect some basic examples which you write for ethics can be turned into anecdotes and stories for essay. Okay? कहाँ से करना है, क्या करना है भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा. Just listen to it. Just listen to what a resource looks like. Second, collect some quotes which can be translated into arguments. अगेन ये भी सिखाऊंगा मैं, सब ये मैं ही सिखाऊंगा, कहीं नहीं जाना है, ठीक है? टेंशन नहीं लो, सब यहीं से सिखा के भेजूंगा. सो कलेक्ट सम कोट्स विच कैन बी यूज्ड एज आर्ग्यूमेंट्स एंड देन सब्सटेंशिएटेड विद सम एग्जांपल्स. थर्ड, यू हैव टू कलेक्ट सम सिनेरियोज, यू हैव टू कलेक्ट सम पोएट्रीज, पोएम्स. ये चीज़ें क्यों हेल्प करती हैं? ये चीज़ें बस ऐसे है कि चेरी ऑन द केक है. केक आपका एक्सप्रेशन ही है, बस ये है कि हाँ अच्छा लगता है ना. अभी मैं आप एक शेर मार दूँ तो आपको अच्छा लगेगा ना कि अरे वाह यार क्या बढ़िया शेर कहा है. तो ये वैसे ही है, राइट? तो लेकिन अगेन अगर अभी कुछ भी बात चल रही है और मैं कुछ भी शेर मार दूँ, है ना, या फिर मैं जो आपको समझा रहा हूँ आपको वही समझ नहीं आ रहा है, बस शेर ही समझ में आ रहा है, तो शेर की तो तारीफ नहीं मिलेगी ना. राइट? यू विल हैव टू हैव अ गुड कंटेंट एंड देन यू विल हैव टू मेक अ केक विद दैट. You'll have to have a good expression and make a cake with that, and then for value addition for the cherry you can put some things. Okay? ठीक है? जैसे मैं भी आपको बोलूँ कि मुझको सुनिए, नज़रअंदाज न कीजिए साहब, मेरे हालात से अच्छे हैं ख्यालात मेरे. सुन के अच्छा लग रहा है ना? इस्माइल राज का शेर है, लेकिन मीनिंग है क्या उसका? यहाँ पे कुछ, यहाँ पे है थोड़ा सा मीनिंग. ओके? ठीक है?
नाउ लेट मी शो यू कि कैसे कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर किया जा सकता है. सो जैसे ये एक बुकलेट है, ऐसे आपको कोई भी बुकलेट मिल सकती है. मैंने ये यूज़ की थी तो मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ. एक पर्टिकुलर कलाम IAS अकेडमी की है. सो जैसे इन्होंने क्या किया है, दे हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड पुट देम इन अ सर्टेन स्टेट. जैसे ये एनेक्डोट्स या पोएम्स हैं, है ना. तो इसमें जैसे मैं इसको कैटेगराइज करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, तो ये कैटेगरी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी एक उठा के लाइक कोई भी स्टोरी एनेक्डोट उठा के उसे 100 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं. लेट अस सी विद एन एग्जांपल. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए ये वाली है, अलेक्जेंडर और पोरस की स्टोरी है ना, कि अलेक्जेंडर ने अटैक किया, पोरस ने अपना किंगडम वो करने से वो कर दिया, लाइक नहीं कि हम ऐसे नहीं देंगे, विल फाइट. एंड देन ही फॉट एंड देन even though he lost, the king treated him as another king, etc., etc. Now this particular story can be used in so many ways. It can be used as courage, है ना. It can be used as bravery. It can be used as ethics. It can be used as how do you treat the other person. It can be used as how to build diplomatic friendships, है ना. जैसे मान लीजिए ये मेरे ऐसे के शॉर्ट नोट्स हैं, उसमें से सपोज करिए हम ये वाली चीज़ ले लेते हैं. बहुत ही फेमस है, मेरी बहुत ही लाइक स्कूल टाइम से फेवरेट पोएम है एक, द रोड नोट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अभी इसको आप कितनी तरीकों से यूज़ कर सकते हो ये समझो. द रोड नोट टेकन कैन एज इट इज बी यूज्ड एज अ पोएम. द स्टोरी ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट दैट ही वॉज लिविंग अ वेल सेटल्ड लाइफ, but still who chose to take the road not taken by being a struggling writer. This own story of Robert Frost can be used as an anecdote. This entire thing can be used as not all those who wander are lost. This entire thing can be used in the essay The ship is safe at the harbor but that is not what it is built for. कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी वेल सेटल्ड लाइफ जी रहा था, सेफ था वहां पे, लेकिन स्टिल चोज टू सेल बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर नॉट बिल्ट फॉर कंफर्ट जोन्स, राइट. तो स्टिल चोज टू सेल एंड बी ए स्ट्रगलिंग राइटर. सो मुझे ऐसा लगता है कि आप बेसिक कुछ कंटेंट इकट्ठा कर लीजिए एंड देन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट इन सर्टेन वेज. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यही है, गांधी का चोरी चोरा मूवमेंट है. नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल विच कैन बी यूज फॉर प्रिंसिपल्स, फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर स्ट्रैटेजी. दिस कैन बी यूज फॉर स्टैंडिंग वट यू बिलीव फॉर. दिस कैन बी यूज फॉर टफ डिसीजंस. दिस कैन बी यूज फॉर लीडरशिप. दिस कैन बी यूज फॉर हैविंग अ विजन. तो एक चीज आप कितनी जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है. ये नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट. लोगों को नोट्स की ज़्यादा चिंता होती है, उनको उनसे यूज़ कैसे करना उसकी कम होती है चिंता. तो खैर, तो ऐसी आप कोई भी बुकलेट, ये वाली बुकलेट मैं पूछ लूँगा, इफ़ दे वांट मी टू प्रोवाइड इट आई कैन प्रोवाइड यू विद दिस बुकलेट. नहीं तो बहुत सारी बुकलेट्स हैं, मैं कोई प्रोवाइड करा दूंगा. इट्स नॉट अ बिग डील इफ दे डोंट वांट टू, बट द फैक्ट इज दैट दिस इज हाउ यू कैन डू. जैसे ये नेल्सन मंडेला की एक स्टोरी है कि भाई नेल्सन मंडेला ने बोला कि अब मैं जेल से बाहर आ गया हूँ, नाउ फ्री कंट्री एटसेट्रा एटसेट्रा, रेसिज्म खत्म हो गया. अब हम वाइट लोगों को अपनी कंट्री से निकालेंगे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें और इस नेशन को बड़ा बनाए. इसको आप कितनी जगह यूज़ कर सकते हो. इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि फॉरगिवनेस क्या होती है. इसको आप यूज़ कर सकते हो कि भाई रिवेंज जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होता है. यू कैन यूज़ इट एज एन आर्मी ऑफ प्रिंसिपल्स. यू कैन यूज़ इट टू बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन टू राइवल्स. यू कैन यूज इट एज रोमांटिक मैन वर्सेस साइंटिफिक मैन. तो कहीं भी यूज कर सकते हो. इट इज अप टू यू, इट इज कंप्लीटली अप टू. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. दैट essay is a paper which allows you to explore and express. बात समझ में आ गई. इससे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, एनेक्डोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है इकट्ठा करने की. दिस इज बेसिक पे मिनिमम. उसको यूज़ कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है. इवन इफ यू आर जस्ट रीडिंग 5 एनेक्डोट्स, इट इज़ मोर देन इनफ इफ यू नो हाउ टू यूज देम इन 50 conditions. So that is more important than collecting a lot of anecdotes or a lot of essay. So this is how I prepared my short notes. ये कुछ short notes हैं मेरे. I'll just provide them. जैसे अंबेडकर साहब ने रूरल इंडिया के बारे में क्या बोला था कि इट इज़ अ डेन ऑफ सोशल लेवल्स. तो कहीं भी आपको रूरल इंडिया का काउंटर व्यू दिखाना है तो बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है. तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें. जैसे एक मेरा बहुत ही फेवरेट वो है साउथ कोरिया वर्सेज नॉर्थ कोरिया. मैंने लिख के छोड़ लिया है, बट वॉट इज़ इट? इट इज़ अ कंपेरेटिव एनेक्डोट विच शोज दैट व्हेन टू countries start at a similar pedestal but with different principles, where can they end up?
Today, South Korea is one of the most developed countries with high technology and high rate of democracy, with one of the best skills. 95% skill index पे हैं वो लोग. And North Korea is something which is a disaster to live in, right? Both got independence during the same time, but followed a different trajectory. So, like, instead of, you can give India versus Pakistan also here, right? But just to make it more, diverse, just to bring up some new perspectives, I gave the example of South Korea versus North Korea. So this is something that you can just have with yourself, okay, and just learn about how to use these things. ठीक है? So this is about collecting resources and the thing of using it, learning how to use it. तो वो भी मैं ही सिखाऊंगा, है ना? सिखाऊंगा तो सारा मैं ही, जब तक आप थोड़ा सा विश्वास रख रहे हो. ओके, चलिए, let's move ahead. The next thing that we have to talk about is the most important phenomena in the essay paper. What is the most important phenomena in the essay paper? हाँ जी, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ थोड़ी सी देर अभी, लेकिन wanted to discuss it separately also. What do you think is the most important thing in a essay paper? चलिए, पॉज करिए, सोचिए. What do you think is the most important thing in a essay paper? Somebody सोच लिया. कुछ लोगों के दिमाग में आएगा फ्लो, कुछ के दिमाग में आएगा प्रेजेंटेशन, कुछ के दिमाग में आएगा कंटेंट, कुछ के दिमाग में आएगा एनेक्डोट, एग्जाम्पल्स, आर्ग्यूमेंट्स. नहीं, कुछ नहीं, नथिंग. What is the most important thing in an essay paper is the topic. ये सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है एक essay पेपर का. अगर आपने यहां मैसअप किया ना, इफ यू मैसअप हेयर, आप दुनिया का सबसे अच्छा essay लिख के आ जाओ, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स. तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चूजिंग द टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू चूज द राइट टॉपिक. अभी यहां पे तो क्या है ना कि मान लो मैं आपसे ऐसे लिखवाऊं, आई विल गिव यू अ टॉपिक and you will have to write upon it. You do not have any choice. But when there are 4 essays and you have to select any one, how do you select it? What is the criteria? So I'll tell you some criteria of how to choose a topic, and then you can apply those criteria. But please understand that this is a very personal choice. ठीक है? तो सबसे पहली चीज ये है कि you should understand what the topic is saying. टॉपिक बोलना क्या चाह रहा है वो आपको समझ में जरूर आना चाहिए. लेट अस सी, दीज आर 8 टॉपिक्स हियर, ओके, एंड इफ वी सी द सेकंड ones, the time to repair the roof is when the sun is shining. Then you cannot step twice in the same river. Smile is a chosen vehicle for all ambiguities. Just because you have a choice, it does not mean that anyone has to be right. When I read these this particular topics, तो मैंने सबसे पहले तो ये कट किया कि भाई नहीं, मैं शायद इतनी सारी चॉइसेस के बारे में नहीं सोच पाऊंगा. देन सेकंड मैंने ये कट किया, क्योंकि एक पे आना है ना नीचे, अ स्माइल इज चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज. अब ये मेरे को पता था कि मैं लिख सकता हूँ, आई कैन इंटरप्रेट स्माइल इन अ लॉट ऑफ वेज, बट अगेन आई वाज लाइक ठीक है, वी हैव अनदर 2 ऐसेज. ये ऐसे मैं लिख सकता था बहुत आराम से, ये मेरे नोट्स में से आया था क्योंकि ये फिलोसफी ऑप्शनल का ही टॉपिक है. दिस इज अ कोट गिवन बाय बुद्धा ऑल्सो, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये कोट दिया गया है, एंड एज इट वॉज फ्रॉम माई नोट्स, राइट. लेकिन अगेन, why did I not choose this particular topic was the reason behind it was क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा ऑप्शनल का जो बायसनेस है ना वो कहीं ना कहीं आ जाएगा, बिकॉज आई हैव रेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन अ सर्टेन वे. सो इफ आई जस्ट गो बाय दैट पर्टिकुलर वे, इट विल बी मोनोटनस एंड इट विल बी बोरिंग, इट विल बी टेक्निकल फॉर द एग्जामिनर. मैं अपना बायसनेस शायद ना हटा पाऊँ. एंड देन आई फाउंड दिस टॉपिक क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इट डेल्ट विद बिल्डिंग रिलेशंस, बिल्डिंग ब्रिजेस, repairing the roofs, repairing what is damaged. ये थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लगा because इसमें emotional intelligence etc. You can talk about a lot of things. तो I ended up choosing this particular topic. तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि what is the process of choosing a topic? सबसे पहले आप ऐसे topics को हटा दो, ऐसी चीज़ों को हटा दो जहाँ पे आपको ये समझ में आए, ये लग जाए कि this topic is not for you, है ना. जिस टॉपिक को आप समझ नहीं पा रहे हो, सबसे पहले उसको रिमूव करो. दूसरे नंबर पे उस टॉपिक को रिमूव करो जिसको आपने समझ लिया बट यू kind of feel that you do not have a lot of content over it, or you cannot break down it into lot of dimensions. ठीक है. See, every topic is good topic and people choose topics and they end up writing a good essay and they end up getting marks. वो point नहीं है. Point is आपको क्या सूट कर रहा है. Then the third thing is that you are able to write a generalist point of view. है ना, बहुत टेक्निकल नहीं हो जाना है किसी भी चीज में कि अगर इकोनॉमी का कोई ऐसे आ जा रहा है तो आप बिल्कुल मतलब उसमें इकोनॉमिक मॉडल्स ही लिख रहे हो. डोंट डू दैट. यू हैव टू बी अ जर्नलिस्ट. यू हैव टू लुक एट द टॉपिक फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू. द एग्जामिनर सिटिंग देयर इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, इन द रिवर वाला essay, if I would have written it and if I would have given it a philosophical touch, the examiner might have got bored and उड़ा देता मेरा नंबर. क्या कर लेता मैं, राइट?
So don't think of doing things which might end up frustrating the examiner. Instead choose a topic that you relate to. अभी ना बहुत ही क्लीशेड लाइन है कि यार रिलेट क्या होता है यार, बट एक्चुअली में दिस इज इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू देर वॉज दिस टॉपर, शायद अपूर्वा पांडे नाम था उनका. शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन ऐसे 170s में इन्होंने कुछ स्कोर किया था, वन ऑफ द हाइएस्ट इन लाइक पास्ट डेकेड. शी चोज टू राइट अ टॉपिक बेस्ड ऑन women empowerment. Okay, now this looks to be a very cliche topic and something that everybody will choose, but still she chose it because she felt that it was close to her. इसलिए उन्होंने टॉपिक चूज किया, लिखा इसके ऊपर, एंड शी एंडेड अप राइटिंग अ वेरी गुड एसे. तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे आप रिलेट कर पाते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको समझ में आ रही होती हैं, है ना. जैसे मुझे मोटिवेशनल एसेज लिखना थोड़ा पसंद है, जैसे आपने देखा भी कि मैंने वो करेज वरेज कैसे लिखा हुआ था, राइट. तो जैसे ये है ना जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, अगर आप इसके लास्ट में जाओगे मैंने इससे कि शायद ये वही वाला एसे है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, तो जैसे ये वाला ऐसे है, दिस इज अबाउट करेज एंड एवरीथिंग, कि आपको ड्रीम करने चाहिए, आपको करेज दिखाना चाहिए. एंड जब यूपीएससी में भी ये ऐसे आया, तो जैसे ये वाला ऐसे था, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर. अब मुझे पता था, आई न्यू दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर एसे, बट हाउ डज दैट मैटर? इफ आई एम एबल टू राइट अ गुड एसे देन इट डज नॉट मैटर, राइट. एग्जामिनर तो मेरी कॉपी चेक कर रहा है ना, उसको करने देते हैं. तो आई एंडेड अप राइटिंग इट एंड आई रोट अ गुड एसे. मैंने इसको किस तरीके से क्रिएटिव बनाया, किस तरीके से इसमें अलग अलग प्रेजेंटेशंस करी, वो अलग पॉइंट है. बट द पॉइंट इज दैट क्योंकि मुझे मोटिवेशनल एसेज, करेज वाले एसेज, थोड़ा लाइक गो एंड गेट ऐसे वाले एसेज लिखने में मज़ा आता है, तो आई अटेम्प्टेड इट. सिमिलरली मुझे विमेन एम्पावरमेंट के एसेज लिखने में मज़ा आता है, तो मैंने लास्ट ईयर मतलब 2021 में वो क्रैडल वाला एसे चूज़ किया था, बिकॉज आई न्यू दैट आई बी एबल टू डू जस्टिस टू इट. तो हर इंसान का अपना टाइप होता है, एंड दिस यू रियलाइज व्हेन यू प्रैक्टिस एसेज. जैसे कुछ लोगों को ना इंटरनेशनल रिलेशंस काइंड ऑफ एसेज लिखना बहुत पसंद है, तो जैसे 2020 में 21 में बहुत अच्छा टॉपिक आया था इंटरनेशनल रिलेशंस पे. कुछ लोगों को हिस्ट्री से ऐसे लिखना बहुत पसंद है, तो जैसे एक ऐसा टॉपिक आया था कि हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, या फिर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वंस एज अ फार्स एंड सेकंड एज अ ट्रेजेडी, ऐसे कुछ करके, तो पीपल रोट ऑन इट. देन कुछ लोगों को हिस्ट्री से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स याद आते हैं, तो दे एंडेड अप राइटिंग द रैशनल मैन वर्सेज द साइंटिफिक मैन. दिस वाज ब्यूटीफुल टॉपिक. तो ऐसे इट इज़ अप टू यू. तो कोई टॉपिक अच्छा बुरा नहीं होता है until and unless you are able to interpret it correctly and write freely इंटरप्रेट करके, उसका कोर समझ के, ऐसे का कोर समझ के कि यहाँ पे ऐसे बोलना क्या चाह रहा है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल बी डिस्कसिंग इट विद यू. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, then you are able to write, then you will be able to interpret essays in a lot of ways and able to write a good essay. तो किस तरीके से कुछ टॉपिक्स को एलिमिनेट करना है वो मैंने आपको समझाया, किस तरीके से यू कैन कम डाउन टू टॉपिक्स, बट डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग दिस. एक ना लाइक सेट करके रखना एग्जाम में अपने दिमाग में कि 5 मिनट में टॉपिक चूज करना है, फिर 20 मिनट में इसको ब्रेनस्टॉर्म करना है, एंड देन लिखना स्टार्ट करना है. तो ये पूरा प्रोसेस इज लाइक 25 मिनट्स. 25 मिनट्स एक टॉपिक के लिए, 25 मिनट्स दूसरे टॉपिक के लिए, 50 मिनट्स हो गए, टोटल आपके पास 180 मिनट्स हैं, राइट. नाउ यू हैव 130 मिनट्स रिमेनिंग, करेक्ट. तो इसको 60-60 मान के कि हाँ 1 घंटे में नाउ आई हैव टू राइट 10 to 11 पेजेस. इस तरीके से अगर आप बिल्कुल ब्रेक डाउन करके रखते हो ना, तो आपको पता है कि नाउ यू हैव टू राइट 1 पेज इन 6 मिनट्स, करेक्ट. And this is very easy to write. When you are writing a 10 marker, you write 2 pages in 7 minutes. You have to write 1 page in 6 minutes. So this is not difficult to write. Okay. तो ये पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपका बन जाएगा कि आपको लिखना कैसे है, किस फ्लो में लिखना है, बस फिर आपको उसको लिखते जाना है. ये भी मैं सिखाऊंगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग से कैसे ऐसे बनाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, ऐसे कैसे बनाते हैं. आई टीच इट, बट फॉर द टाइम बिंग दिस इज द फैक्ट. ओके, अंडरस्टूड. This is how you can choose your topic. So I'm not giving you parameters, I'm just telling you to go with something where you can express yourself, where you can generate dimensions, where you can think of some basic examples, and to avoid topics that look too not going with you, that you're not happy to write, जो आपको लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है, because you'll end up writing a boring essay that way. So ऐसे उसको avoid करना चाहिए. Clear? Now once you've chosen the topic and you are ready to go, then what's the next most important thing is brainstorming. Okay, now what is meant by brainstorming? Brainstorming का ये मतलब होता है कि आपको आपका essay मिल गया है. Now you have to think about a lot of dimensions, about how this essay can be interpreted in a lot of ways. What are the various dimensions that you are going to talk about in the coming 10 pages?
ठीक है, चलो ठीक है, कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ. लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मान लीजिए यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं. अभी यही दिख रहा है सामने. अशिप फिर बोलोगे कि आसान ले लिया. चलो ये ले लेते हैं. यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर. ओके, लेट अस जस्ट टेक इट. यू कैन नॉट एंटर ट्वाइस इन द सेम रिवर. ठीक है, नाउ लेट अस फर्स्टली इंटरप्रेट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ये क्या कहना चाह रहा है कि आप एक नदी में दो बार नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि नदी बदल गई है ना. यहां पे एक नदी थी, आपने इसमें एक बार पैर रखा, फिर आपने बाहर पैर निकाला, तो अब अगले मोमेंट ये पानी आगे बढ़ गया है ना. सो ये नदी बदल गई है. तो आप सेम रिवर में जब आप दोबारा एंटर कर रहे हो तो इट्स अ डिफरेंट रिवर, है ना. तो यू कैन नॉट एंटर द सेम रिवर ट्वाइस. सो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस एसे? द क्रक्स ऑफ दिस एसे इज चेंज, दैट थिंग्स आर चेंजिंग. करेक्ट. What is another dimension or what is the another crux of this particular essay is opportunity. कि एक बार अगर आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही है, देयर वाज अ रिवर विच यू कुड हैव एंटर्ड बट नाउ you cannot enter it twice. So if you skip it the first time, you're not going to get the second opportunity to do that. So this river is gone now. So this essay can also be interpreted as an essay of opportunity. समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं एसे का क्रक्स समझना. तो इसका क्रक्स चेंज हो सकता है, इसका क्रक्स अपॉर्चुनिटी हो सकता है, इसका क्रक्स डिसीजन मेकिंग भी एक तरह से हो सकता है कि भाई आप फर्म डिसीजन लो जब आप ले रहे हो तो, या टेकिंग डिसीजन एट द राइट मोमेंट. बट मेजरली पीपल इंटरप्रेटेड एज क्रक्स, क्योंकि उसी सेंस में इस पर बात भी करी गई है इन वेस्टर्न इंडियन फिलोसफी. तो वो एक पॉइंट है. नाउ व्हेन यू आर सॉर्टेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई मैंने इसका ना क्रक्स समझ लिया कि ये इसका क्रक्स है, अब इस टॉपिक को ब्रेक करो. सबसे पहले यू क्या हो सकता है इसमें? यू एक इंडिविजुअल हो सकता है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, नाउ लेट अस ट्राई एंड ब्रेक दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, सो यू कौन कौन हो सकता है? यू एक इंडिविजुअल हो सकता है, यू एक कंपनी हो सकती है, यू एक सोसाइटी हो सकती है, यू एक गवर्नमेंट हो सकती है, यू एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, यू एक कंट्री हो सकती है, यू ह्यूमैनिटी हो सकती है, यू इंटरनेशनल कम्युनिटी हो सकती है. राइट, सो मेनी वेज. फिर इन पे सब पे एग्जाम्पल सोच लो. एज एन इंडिविजुअल एक एग्जाम्पल सोच लो, एज ए सोसाइटी, चलो उस पर बात करेंगे अभी. कैन नॉट एंटर ट्वाइस इन द सेम रिवर. ठीक है, अभी रिवर क्या है यहां पे? इट इज अ फ्लो. फ्लो ऑफ वॉट? इट कैन बी फ्लो ऑफ आइडियाज, इट कैन बी फ्लो ऑफ टाइम, इट कैन बी फ्लो ऑफ, एक सेकेंड जस्ट लेट मी इरेज. हाँ, तो इट कैन बी फ्लो ऑफ टाइम, इट कैन बी फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटी जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, इट कैन बी फ्लो ऑफ डिप्लोमेसी इन द केस ऑफ अ कंट्री, इट कैन बी फ्लो ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज. तो दे कैन बी लॉट ऑफ फ्लोज इन विच यू कैन इंटरप्रेट अ रिवर. एंड देन कैन नॉट एंटर ट्वाइस, कैन नॉट एंटर ट्वाइस. नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट दी सिचुएशंस कि हाँ आप एक बार कोई चीज़ कर रहे हैं फिर आप उसको दोबारा नहीं कर पाएंगे. सो एक बार डू इट वंस, यू ओनली गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग वंस. आफ्टर दैट इट चेंजेस. सो एज एन इंडिविजुअल इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी देन यू नीड टू इकोनॉमिकली डू इट. इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू नीड टू, अगर आपको एक कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको कैश करिए अभी के अभी, बिकॉज फिर वो निकल जाएगी. सो हाउ डू यू थिंक ऑफ इट? हाउ डू यू थिंक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट? मान लीजिए सपोज करिए सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी टू स्टार्ट द आज़ाद हिंद फौज या फिर टू टेक ओवर द आज़ाद हिंद फौज, टू लीव द इंडियन सिविल सर्विसेज. अब दिस वॉज नॉट ईजी टू लीव द इंडियन सिविल सर्विसेज. अगर ये इसको ज्वाइन करके रख लेते तो ये आज़ाद हिंद फौज बनाना, इसको खड़ा करना, इसको इतना बड़ा मुकाम तक लेके जाना, ये सब नेताजी नहीं कर पाते. राइट, तो एक अपॉर्चुनिटी आई थी और अगर उन्होंने उस टाइम उसको ग्रैब कर लिया तो वो चीज डन हो गई. वंस दैट अपॉर्चुनिटी वुड हैव पास्ड दे वुड हैव नॉट बीन एबल टू डू इट. ओके, सिमिलरली आप किसी भी चीज पे सोच सकते हैं. यू कैन थिंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन को सपोज करिए एक कोई अपॉर्चुनिटी मिली कुछ करने की, एक कंट्री को, है ना, लेट अस सपोज इंडिया, है ना, इंडिया के पास 1990s में आया
opportunity to liberalize, to bring the LPG reforms, and they brought it. LPG reforms आ गए. अगर आप उस टाइम उस ट्रेन को मिस कर जाते, उस टाइम उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते, उस टाइम उस रिवर में एंटर नहीं करते, तो आपकी हालत क्या हो जाती जो आज पाकिस्तान की है, जो श्रीलंका की हुई, जो और बहुत सारी इकोनॉमीज की हो रही है. करेक्ट. सो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना इंपॉर्टेंट था. ऐसे इसका काउंटर एग्जाम्पल सोचिए. थिंक अबाउट द कश्मीर इशू. कश्मीर इशू के बारे में सोचिए. एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कश्मीर इशू को सॉल्व करना जरूरी था, है ना. जिस टाइम आप प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कर रहे थे, यू शुड हैव इंटीग्रेटेड कश्मीर एज वेल, बट यू मिस्ड दैट रिवर, यू डिडंट एंटर दैट रिवर, एंड देन द रिवर कंप्लीटली चेंज्ड. For decades and decades, it led to be the most brutal issue between India and Pakistan, and even for the Indian state. It led to इतने शहीद हुए लोग इस इशू के चक्कर में. It led to so much of damage in terms of property, in terms of life, because you didn't enter the river at the right time, and then it didn't present you an opportunity to do. तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि आप किसी भी चीज को उस एंगल से देख सकते हैं. मूवी से उठा लीजिए, चलिए स्वदेश का एग्जांपल उठा लीजिए, है ना. क्या नाम था, मोहन करके नाम था ना शाहरुख खान का उसमें. तो देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू डू समथिंग सो बिग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बाय कमिंग बैक टू हिज विलेज. ही केम बैक एंड डिड इट. इफ ही वुड हैव जस्ट थॉट कि यार नहीं यार बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, वो नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन डजंट हेल्प. if he would have procrastinated on that particular thing, तब तो वो गई थी ना opportunity, it would cease to exist. करेक्ट. ऐसे ही सोचिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया ने डिसाइड किया कि हम एक सेक्युलर स्टेट बनाएंगे, पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम एक रिलीजियस बेस्ड थियोक्रेटिक स्टेट बनाएंगे. रिवर तो सेम है. इंडिया ने सेक्युलर रिवर में एंटर किया, पाकिस्तान ने रिलीजियस थियोक्रेटिक रिवर में एंटर किया. दोनों अपनी रिवर पे जा रहे हैं. जो अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास कि वो सेक्युलर हो सकते थे, उन्होंने वो मिस कर दिया. उसका भुगतान आज तक कर रहे हैं. इंडिया ने सही टाइम पे उस रिवर में एंटर कर लिया. द एंटायर वेस्ट सेड कि भाई इंडिया में आप इलेक्शंस क्यों करा रहे हो, क्यों आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दे रहे हो, आपके यहाँ पे तो लोगों के पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है, ये वोट क्या डालेंगे, चॉइस कैसे बनाएंगे. बट इंडिया टुक स्टैंड कि नहीं, आज हमें ये चीज देनी है, हमें डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एंड वी डिड दैट. तो वी टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट एंड द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. अगर हम वेस्ट की बात से इफेक्ट होके इस रिवर को पास ऑन हो जाने देते, तो हम कैसे इक्वालिटी के चैंपियन बनते दुनिया में कि नहीं हमारे यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वन पीपल वन वोट है. नो, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग थिंग्स टू यू. You can interpret it in as many ways as you want. My interpretation might not be the best interpretation also. मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इसमें से कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो आप जानते नहीं थे. This is just about aligning. This is just about expressing. This is just about creative होना. तो अपने आप को कंटेंट के दायरे में बांध के मत रखिए. इंटरप्रेट करिए टॉपिक को, समझिए सबसे पहले, अंडरस्टैंड द टॉपिक, इंटरप्रेट इट करेक्टली, एंड देन लेट द आइडियाज फ्लो. उसको बस पेज पे उतारते रहिए व्हाइल यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग. रुकने मत दीजिए, आने दीजिए. ये पहला पार्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग का. देन द सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अरेंजिंग योर आइडियाज. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू आर डन विद इट, तो इसके बाद आपको अरेंज करना है कि भाई मेरे पास इतने सारे एनेक्डोट है, मेरे को इंट्रो में ये वाली स्टोरी लिखनी है, देन मुझे पोस्ट इंट्रो में ये लिखना है, देन मैं जब स्टार्ट करूंगा तो मुझे सबसे पहले ये बताना है कि वाई कांट वन एंटर द सेम रिवर ट्वाइस. तो उसमें मुझे ये वाले एग्जाम्पल्स देने हैं, या फिर ये वाले डायमेंशंस देने हैं, ये वाले रीजंस देने हैं. वाई कांट वन एंटर द सेम रिवर ट्वाइस? बिकॉज द रिवर चेंजेस. Why can't one enter the same river twice? Because the opportunity ceases to exist. Why can't one enter the same river twice? Because it is only for the time being. Because change is the only constant. ये आपके आर्ग्यूमेंट बने. इनमें एग्जाम्पल आप ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्म कर चुके हो. आर्ग्यूमेंट दो, एग्जाम्पल डाल दो. कहां आपको किसी पेस्टल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी बताइए. करेक्ट.
पीपल, अब देखिए आपको मान लीजिए एग्जाम्पल सोचना है, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स? द बेस्ट वे टू थिंक ऑफ एग्जाम्पल इज योर सिलेबस. व्हाट डू? यू जस्ट थिंक अबाउट द सिलेबस, है ना. जैसे मान लीजिए आपने एनवायरमेंट का टॉपिक उठाया, GS3 पे आप गए, सिलेबस में एनवायरमेंट उठाया. नाउ थिंक अबाउट इट. यू कैन नॉट एंटर द सेम रिवर ट्वाइस. यू कैन नॉट लिटरली एंटर द सेम रिवर ट्वाइस इन केस ऑफ द एनवायरमेंट. बट चलिए ठीक है, हाउ डू यू थिंक ऑफ इट कि भाई आज अगर आपने क्लाइमेट चेंज पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए, you are going to lose this race. The temperature will be 3 degree or 4 degree as per the IPCC report, and you can quote that data in the argument that now is the time to enter the river of environmental awareness. Once it passes, it will be out of hand because glaciers are melting, species are ceasing to exist. We have seen massive extinctions, we have seen floods, we have seen damaged rain patterns, damaged monsoon patterns, El Nino, La Nina, damage of so many of coral reefs. तो बहुत कुछ हो रहा है. If we do not enter the river of environment awareness now, environment action, awareness भी छोड़ो, environmental action now, it will pass. वो चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा. Then it will not be under your control. गया वो. सो दिस इज हाउ यू जस्ट ब्रेन स्टॉर्म. एंड तब वो वाली बात मेरी समझ में आ गई आपके, लाइक दिस इज क्लियर कि ये सब एग्जाम्पल्स आपने जनरेट कर लिए. देन सबसे पहले मान लीजिए आपने लिखा वाई कांट वन एंटर द सेम रिवर ट्वाइस. ओके, तो उसके अंदर आपने इस तरीके से 3 डायमेंशन सोचिए कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करूंगा बिकॉज द रिवर चेंजेस, तो इसमें मैं ये वाले एग्जाम्पल्स दूंगा, ये वाले आर्ग्यूमेंट्स दूंगा. देन नेक्स्ट, बिकॉज अपॉर्चुनिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. देन नेक्स्ट, ऐसे करके यू जस्ट ब्रिंग ऑन सब डायमेंशंस एंड उनके एग्जाम्पल्स में ब्रिंग आउट समथिंग फ्रॉम योर सिलेबस एंड यू आर डन. बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं एनालिटिकल ऐसे लिखना, ना कि सिर्फ डायमेंशन उठा के लिखते चले जाना. पॉलिटिकल रिवर पास हो गई है, एनवायरमेंटल रिवर पास हो गई है, हम ये डायमेंशंस बना रहे हैं. ये आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये आपको एग्जाम्पल्स सोचने में हेल्प कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम्पल्स मल्टी डायमेंशनल हो जाए. दीज कैन नॉट बी योर आर्ग्यूमेंट्स. टेक्निकल रिवर, इकोनॉमिक रिवर, ऐसे नहीं करना है. रिवर इज अ रिवर, इट इज जस्ट अ फ्लो. आर्ग्यूमेंट बनाओ और इन चीजों को एग्जाम्पल की तरह डालो ताकि आपका डाइवर्सिफाइड लगे आंसर. ओके, समझ में आई बात? सो द फर्स्ट थिंग इज वाई कांट वन एंटर द सेम रिवर ट्वाइस. ओके, सेकेंड एस्पेक्ट इसका क्या हो सकता है? वॉट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस, है ना. इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं कि आप एक रिवर में दोबारा एंटर नहीं कर पा रहे हैं. तो उसके पहले साइड के इंप्लीकेशंस क्या हैं? दैट यू हैव टू बी वेल अवेयर, यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, you have to be self-aware to know when to enter a particular river. Second, you have to choose your rivers wisely. है ना, सेक्युलर जाना है कि थियोक्रेटिक जाना है, चूज योर रिवर्स वाइजली. थर्ड, डिसीजन मेकिंग हैज टू बी फर्म. सुभाष चंद्र बोस, इंडियन सिविल सर्विसेज, पहला अटेम्प्ट, नहीं करना ज्वाइन, आजादी दिलाएंगे. फर्म डिसीजन मेकिंग कि अभी एंटर करना है तो करना है. आई बात समझ में आ रहा है किस तरीके से एनालिसिस होता है? क्यों घिसी पेटे अप्रोचेस से मार्क्स नहीं आएंगे? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ये दिखाता है कि आपको समझ कितनी डीप है आपकी. एंड देन इन हर एक चीज़ों में आपको एग्जाम्पल डालते जाना. बन गया पूरा इससे. तो दिस इज हाउ यू स्ट्रक्चर. एक बार ब्रेनस्टॉर्म का पहला पार्ट क्या है कि आइडियाज आने दो. ब्रेनस्टॉर्म का सेकंड पार्ट क्या है कि उन आइडियाज को एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में बिल्ड कर लो. पहला ये, फिर ये, इसके अंदर ये वाला आर्ग्यूमेंट डालूंगा, इसके अंदर एग्जांपल डालूंगा, ये आर्ग्यूमेंट डालूंगा, एग्जांपल डालूंगा, देन ये वाला पॉइंट लेके आऊंगा, इसके अंदर ये डालूंगा, एग्जांपल, ये हो गया इतना बिल्ड. ठीक है, देन यहां तक पेजेस भी, जैसे मैं तो पेजेस भी लिख लेता हूँ. 1.5 पेज पे ऐसे आएगा, 1.5 पेज पे इंट्रो आएगा, देन ये वाला डायमेंशन आएगा 1 पेज पे, ये वाला आएगा 1 पे, ये वाला आएगा आधे पे, तो 2.5 ये हो गया. फिर ये वाला 1 पे, ये वाला 1 पे, ये वाला आधे पे, तो 2.5 ये हो गया. तो 2.5 and 2.5 and 2.5 and 1.5 6.5. So I'm done with 6.5 pages. Okay, maybe 7 pages. Now I'm left with what? 4 pages. Now in these 4 pages, what all can I do? First, I can present a counter view. What is a counter view? Can you enter the same river twice? Are there situations where you can enter the same river twice? Yes.
Yes. How? Present a counter view. The best time to plant a tree was 20 years ago, and the second best time is now. सिर्फ क्षणिकवाद नहीं है ना, सब कुछ बदल नहीं रहा है, कुछ चीजें कांस्टेंट हैं. What is constant? Constant is your ability to take actions today, now. आपने 20 साल पहले एनवायरनमेंट के लिए काम नहीं किया, आज तो करिए. जब जागो तभी सवेरा. सो देर आर सम रिवर्स दैट कीप्स ऑन प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स. There are some streams which do not change. The intensity might have changed, but you can still enter them. You can still enter that same river. इंडिया का कोई भी शूट उठा लो, फॉर एग्जाम्पल से अच्छा सा है ना, कुछ इंटरेस्टिंग सा. सपोज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. 20 साल पहले 25 साल पहले आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते थे, आपने नहीं किया. यू डिडंट वर्क अपॉन इट. कोविड केम एंड यू स्टार्टेड वर्किंग अपॉन इट. सो द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ अगेन. इट इज अप टू यू इफ यू कैन ग्रैब इट. द फॉर्म माइट हैव चेंज्ड, but it's still an opportunity to grab. So when you're presenting the counter view, you can present such examples. Again, मैं कंटेंट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं. ठीक है, काउंटर व्यू आ गया. काउंटर व्यू पे कितना चला गया, मान लो एक पेज में काउंटर व्यू आ गया. कितने पेजेस हो गए, 8 हो गए. अब बचे 3 पेजेस. तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, इनमें से अब मेरा टाइम क्या आ गया, मेरे को पेन अल्टीमेट कंक्लूजन लिखना है. पेन अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होता है कि आपने ना कुछ इश्यूज डिस्कस किए हैं इससे में, है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट रिवर. तो ऐसे करके यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी है जो आपको इस पेपर से लिंक कर दे, एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक कर दे, गवर्नमेंट से लिंक कर दे, कि व्हाट आर द रिवर्स दैट वी नीड टू एंटर. व्हाट आर द रिवर्स दैट वी नीड टू एंटर. हमें आज के टाइम पे कौन से रिवर्स में एंटर करने की जरूरत है. द रिवर ऑफ ब्रिंगिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, द रिवर ऑफ गिविंग बेटर हेल्थ, द रिवर ऑफ ensuring education, quality skilling, of increasing female participation, of shedding the colonial past, of making Amrit Kal truly an Amrit Kal, of generating karma yogis, of fulfilling Panch Pran. Which are the rivers that you need to enter today and not miss them? Then bring something ethical, bring something individual based. A river of self improvement needs to be entered today. एक इंडिविजुअल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो खुद सेल्फ इंप्रूवमेंट की रिवर में कब एंटर कर रहे हो. द रिवर ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट नीड्स टू बी एंटर्ड टुडे. ऐसे करके आपको ना अपने हिस्से को बस दिखाना एग्जामिनर को कि यार समझ गया हूं मैं तेरा टॉपिक, तो नंबर दे दे बस. क्लियर. देन व्हेन यू आर डन विद द पेनल्टीमेट कंक्लूजन, यू मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन, द लास्ट पार्ट. तो कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन में वही चीज है दैट यू एंड अप टेलिंग द एग्जामिनर कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा. गिव अ फ्यूचरिस्टिक व्यू, गिव अ विजनरी व्यू. कुछ विजनरी दो. मास्टर ऑफ माई फेट, कैप्टन ऑफ माई सोल, सो आई एम द डिसीजन मेकर. आई विल चूज माई रिवर्स, चूज योर रिवर्स. ऐसे करके कुछ भी, गिव अ फ्यूचरिस्टिक व्यू, है ना, कुछ पॉजिटिव, कुछ एक फ्यूचरिस्टिक व्यू दो एग्जामिनर को कि एवरी इंडिविजुअल शुड नॉट बी टोल्ड टू एंटर द रिवर, rather be trained to enter the right river, rather be encouraged to enter the right river, rather be taught to enter the right river. We need to make people independent, we need to make people worthy enough to enter rivers and to not be scared of entering rivers because the rivers might not present themselves again, because the opportunity might cease to exist. So again, I'm just giving you dimensions to think. It is up to you to think. आगे बात समझ. ओके.
और फिर आपको बस लिखना, लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना है। तो ऐसे करके आपका इससे बिल्ड हो जाता है। अब दिस वॉज अ वेरी रूडिमेंट्री व्यू, ठीक है। मैं आपको अब फटाफट कुछ टाइप ऑफ इंट्रो दिखा देता हूँ। ये वीडियो बहुत ही लंबा जाते जा रहा है, बट मैं आपको फटाफट कुछ टाइप ऑफ इंट्रो दिखा देता हूँ दैट यू कैन जस्ट सी। जैसे ये मेरा ही खुद का ही लिखा हुआ ऐसे है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, है ना। सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर क्या है कि आप अपने एनिमी को सबड्यू कर दो इवन विदाउट फाइटिंग। नाउ दिस इज कॉल्ड अ कंपेरेटिव इंट्रो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज कॉल्ड अ कंपेरेटिव इंट्रो। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा व्हाई आई एम सेइंग सो। In the latter half of the 19th century, driven with the policy of blood and iron, Otto von Bismarck unified Germany by fighting a series of wars and subduing Denmark, Austria, and France. Less than a century later, through the spring of 1947, Sardar Vallabhbhai Patel unified India by subduing more than 500 princely states by his pragmatic diplomacy, largely without fighting. Whereas Germany didn't remain wholly unified for long after Bismarck, India's integrity has been solid and unquestionable, hence demonstrating how the supreme act of war is subduing the enemy without fighting. क्या है ये एक कंपेरेटिव इंट्रो है। मैंने दो पर्सनालिटीज को कंपेयर किया, ओटो वन बिस्मार्क एंड श्री पटेल साहब। तो बिस्मार्क और पटेल को मैंने कंपेयर करके दिखाया कि बिस्मार्क ने लड़ाई करके अपने एनिमीज के ऊपर फतेह हासिल करी, पटेल साहब ने डिप्लोमेसी से वो फतेह हासिल करी, प्रेग्मेटिक डिप्लोमेसी। और किसकी फतेह लंबी रही? पटेल साहब की, क्योंकि इंडिया की इंटीग्रिटी आज तक अनक्वेश्चनेबल है। वी हैव नॉट बीन इवन लाइक क्लोजली व्हाट जर्मनी बिकेम, है ना, शेड टू पीसेस। नहीं टिक पाया ना वो यूनिफाइड जर्मनी का कॉन्सेप्ट, लेकिन इंडिया की इंटीग्रिटी आज तक टिकी हुई है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस, द टू मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक्स ऑफ GS1। इनको मिला के आई मेड अ कंपेरेटिव इंट्रो। तो वो लाइक राधे श्याम, राम मोहन, वो सब स्टोरीज लिखने के बजाय लेट्स राइट समथिंग कंक्रीट, है ना, समथिंग गुड। ऐसे ही सपोज करिए जैसे ये है एक, दिस इज अ कौटिल्य का बेस्ड, है ना, कि पर्सनालिटी पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की टू फ्यूचर रेडी गवर्नेंस, है ना। कैसे लिखा है? कौटिल्य इन हिज बुक अर्थशास्त्र व्हिच वाज रिटन 2400 ईयर्स अगो गिव द कांसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एज दिस 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 दिस। तो गवर्नेंस, है ना, उसको पिक करके कौटिल्य से रिलेट किया, आगे बता दिया किस तरीके से चल रहा है। तो ये कहाँ प्रिपेयर किया होगा? ये मोस्ट प्रोबेबली एथिक्स में प्रिपेयर किया होगा कि गवर्नेंस पे कौटिल्य ने क्या बोला है, और यूज यहाँ पे कर लिया। ये किसी की स्क्रीनशॉट से है, ये विजन का कोई डॉक्यूमेंट था, मैंने वहाँ से लिया है, तो उनको क्रेडिट दे देता हूँ भाई, है ना, क्रेडिट देना चाहिए। देन देर आर सम थिंग्स यू लर्न इन काम एंड सम इन स्टॉर्म। ये देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे किस तरीके का इंट्रो डाल सकते हो। कुछ चीज़ें आप काम में सीखते हो, कुछ स्टॉर्म में सीखते हो, तो ऑलरेडी दो चीज़ें हैं ना, तो दो तरीके के इंट्रो डालो, कंपेरेटिव डालो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बुद्ध का दिखाया कि बुद्ध ने कैसे अपने जीवन का जो मकसद है वो काम में पाया, कि रात को आराम से निकल गए घर से, घूम रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, मेडिटेट कर रहे हैं, काम में पा लिया। अशोक ने कलिंग वॉर के टाइम अपना जीवन का मकसद पाया, तो उसने स्टॉर्म के टाइम पाया। सो काम का एक एनेक्डोट और स्टॉर्म का एक एनेक्डोट, दोनों रिलेटिवली दिखा दिए, टॉपिक का पूरा एड्रेस हो गया डिमांड इंट्रो के इंट्रो में, ठीक है। तो फिर ये कोट बेस्ड इंट्रो है, अगर आपको कोट से स्टार्ट करना है तो आप कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये अगेन एक एनेक्डोट बेस्ड इंट्रो है, सुधा मूर्ति का होगा मे बी, ये सुधा मूर्ति का नहीं होगा तो किसी सुधा का होगा। तो दिस इज अ क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी, है ना, ये एक स्टोरी बेस्ड इंट्रो है। देयर आर सम एनेक्डोट्स जो कि रियल स्टोरीज होती हैं, देन देयर आर सम स्टोरीज जो कि सिर्फ स्टोरीज होती हैं विच इज जस्ट बिल्ड ओवर, ठीक है। सो दिस इज अ स्टोरी बेस्ड इंट्रो। देन लेट्स मूव अहेड, सी अगेन, है ना, यू कैन बी वेरी क्रिएटिव यार। सीन 1 सीन 2, है ना, यू आर प्रेजेंटिंग 2 सीन्स। जेंडर इक्वालिटी, प्री कंडीशन फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस इन इंडिया। तो जेंडर पे क्वेश्चन आ रहा है, तो हमेशा बहुत आसान होता है एक केस स्टडी टाइप, एक सीन टाइप इंट्रो लिखना। सीन 1 में आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अनुपमा एक एजुकेटेड वुमेन है, उसके पास जॉब है, फैमिली इंश्योरेंस है, एम्पावर्ड है, हेल्थ का ध्यान रख सकती है। वहीं दूसरी तरफ रानी है जो कि एक रिमोट विलेज में हाउस वाइफ है, उसकी एजुकेशन नेग्लेक्टेड है, इनइक्वालिटी उसके हर स्टेज पे उसने फेस करी है। तो जेंडर इक्वालिटी किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो ऐसे करके आपने 2 सीन्स प्रेजेंट किए, एक स्टार्क पिक्चर दिखा दी एंड यू आर क्लियर विद इट। नाउ ये एक मूवी से कोट है ना, मुन्ना भाई MBBS से आप देख सकते हैं। सो दिस इज अ मूवी बेस्ड इंट्रो। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। डोंट फॉल इनटू दीज ट्रैप्स की इवैल्यूएटर ने आपको कुछ बोल दिया और आप उसमें पढ़ रहे हैं, नहीं, मेरी मानो, ओके, क्लियर। चलो आगे। हाँ, तो ऐसे करके यू कैन हैव अ लॉट ऑफ इंट्रोज। सो इंट्रो से आप अचीव क्या करना चाहते हो?
दिस आर द टाइप ऑफ इंट्रो, बट इंट्रो से आप अचीव क्या करना चाहते हो? एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एड्रेस द टॉपिक। मेक योर इंट्रो इंटरेस्टिंग बट एड्रेस द टॉपिक। अगर आपको कोई एनेक्डोट दुनिया में कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा ना, आप सिंपल टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, आपके मार्क्स पे 5 नंबर का भी फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज यू आर एड्रेसिंग द टॉपिक। डू नॉट फॉरगेट टू एड्रेस द टॉपिक इन द इंट्रोडक्शन। एड्रेस जरूर करना टॉपिक को, ठीक है? जैसे मैंने सबड्यू द वॉर वाले एनिमी वाले में पूरा टॉपिक एड्रेस किया ना, सुप्रीम आर्ट कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है, जेंडर इक्वालिटी में दोनों तरफ के देखे आपने सीन्स, तो ऐसे करके पूरे को एड्रेस करो, एड्रेस इट होल। इंट्रो में एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि इंट्रो पढ़ के आपका ये देख लेगा वो कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया है। तो डोंट गिव द एग्जामिनर अ चांस टू सी दैट यू हैव मिस इंटरप्रेटेड और इनकम्प्लीटली इंटरप्रेटेड द टॉपिक, ये चांस नहीं देना एग्जामिनर को। एड्रेस द टॉपिक कंप्लीटली इन द इंट्रोडक्शन, चाहे आपको एनेक्डोट लिखना हो, स्टोरी लिखनी हो, डेटा लिखना हो, सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखना हो, कोट लिखनी हो, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज यू आर एड्रेसिंग द कंप्लीट टॉपिक। आगे बात समझ। इसकी लेंथ कितनी होती है? तो जनरली मैं ये मानता हूँ कि मतलब जैसे आपको यहाँ आधे पेज से शुरू करना होता है एग्जाम में, ऊपर आधे पे टॉपिक लिखे होते हैं, तो ये वाला आधा पेज और अगले पेज का यहाँ तक, तो मतलब ये एक पेज, ये इतना आपका इंट्रो हो जाना चाहिए। थोड़ा सा नीचे भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई मारपीट नहीं हो जाएगी, बट बेसिकली मतलब ऐसे 150 वर्ड्स तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं। ट्राई करना चाहिए 120 तक जाने का, बट 150 तक जा सकते हैं, बिकॉज एल्स लाइक वो ऐसा लगता है कि आप स्टोरी खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, जबकि एग्जामिनर ने क्या बोला था कि आपको कंसाइज होना है ना? तो वो थोड़ी सी एक चीज़ है। बाकी इट इज़ लाइक वेरी अप टू द पर्सन। अगर उनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें एड्रेस कर रही है, क्रिएटिव है, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। क्लियर? ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, इंट्रो का डन। नाउ लेट अस लुक एट द पोस्ट इंट्रो। पोस्ट इंट्रो है ना, बहुत लोगों को इसमें इशू आता है कि भाई मैंने इंट्रोडक्शन लिख लिया, मैं बॉडी पे जाना है, कैसे जाऊँ? सो सी दिस इज़ वन वे, दो आई पर्सनली डोंट डू दिस, लेकिन बहुत लोग करते हैं। ठीक है, ये रैंकर्स की किसी की कॉपी है। इन दिस ऐसे वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट टू वी मीन बाय फ्यूचर रेडी गवर्नेंस इन एवरी एस्पेक्ट, हाउ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज की फॉर फ्यूचर रेडी गवर्नेंस। ऑल्सो वी विल डिस्कस द प्रोग्रेस दैट हैज बीन मेड टुवर्ड्स दिस एंड अलॉन्ग विद द चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। तो पहले ही एक उसमें एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में बता दिया कि आगे क्या आने वाला है, व्हाट इज कमिंग अहेड इन दिस पर्टिकुलर एसे। तो इसको बोलते हैं पोस्ट इंट्रो। बहुत लोग करते हैं ये, इवन अनुदीप सर ने भी बताया था कि आप ऐसे कर सकते हैं और वो करके आए थे। तो ये एक अच्छा तरीका होता है ना? मैं आपको आज यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालना भूल गया, बट फॉर हिंदी मीडियम या फिर फॉर इंग्लिश मीडियम एज वेल, रवि सिहाग की कॉपी दिखाऊंगा मैं, उन्होंने भी ऐसे ही किया है। वो स्टार्टिंग में बता देते हैं पैराग्राफ में कि इस हिस्से में क्या क्या आने वाला है। दिस इज अ गुड थिंग टू डू। एग्जामिनर को पता चल जाता है स्टार्टिंग में, है ना? वो चीज़ें नहीं यार, उस चक्कर में मत पड़ो कि किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इससे सस्पेंस खत्म हो जाता है। भाई थ्रिलर नहीं लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, इट्स ओके टू डू दिस। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट करने के चक्कर में कुछ भी सिखाते रहते हैं एग्जामिनर। ये ठीक है, इनके चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे जैसे ये वाला देख लो, इन दिस एसे वी शैल लुक एट व्हाट एग्जैक्टली इज इक्वालिटी एंड इक्वालिटी, हाउ इक्वालिटी डिफर्स इन इट्स एक्सटेंट टू डिस्क्रिमिनेशन एंड हाउ फलाना फलाना फलाना। तो मतलब ऐसे करके अपने एक उसमें बता दे रहे हो कि हाँ दिस इज हाउ दीज आर द थिंग्स, दिस आर द टॉपिक, दिस आर द डायमेंशंस दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर एसे। क्लियर? आगे बात समझ। तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंट्रो। तो आप इस तरीके से करके अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, जैसे सपोज करो ये मेरे वाला टॉपिक है, मैंने नहीं किया होगा मोस्ट प्रोबेबली, जिससे ठीक है, तो जैसे मैंने ये इंट्रो किया है एक, इट्स इजी टू स्टैंड विद द क्राउड, इट टेक्स करेज टू स्टैंड अलोन। तो मैंने ये रोजा पार्क्स के एक एनेक्डोट से स्टार्ट किया है, तो दिस इज एन एनेक्डोटल बेस्ड इंट्रो। किसी को एनेक्डोट पढ़ना है तो यू कैन जस्ट पोज एंड रीड इट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रिलेट किया, द अफर्मेशन स्टेटमेंट इट्स इज टू स्टैंड विद द क्राउड इज अ बिलीफ विच शोज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन नेचर दैट वी टेंड टू फॉलो द कन्वेंशंस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने खत्म किया इसको। सो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज, यहाँ पे मेरा एनेक्डोट वैसे बेसिकली खत्म हो रहा था, बट देन आई रिलेटेड द एनेक्डोट टू द एसे। ये मेरा स्टाइल है, दिस इज माई स्टाइल ऑफ डूइंग थिंग्स। मैंने यहाँ पे अपना एनेक्डोट खत्म किया, देन पोस्ट इंट्रो में मैंने एनेक्डोट को एसे से रिलेट किया अलग से। द लेजेंडरी लेडी sat still and ironically showed how standing alone requires courage, whereas the people in the bus just stood like a crowd with ease. तो ऐसे करके मैंने इसको रिलेट कर दिया, थोड़ा इमोशनल एंगल दे दिया इसको। ठीक है, बात समझ में आई? देन इंस्टेड ऑफ गिविंग अ पोस्ट इंट्रो का पैराग्राफ जहां पे मैं समराइज करूं अपने हिस्से को, व्हाट आई डिड इज आई एक्सप्लेन्ड द टॉपिक, कि मुझे इस टॉपिक से क्या समझ में आ रहा है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है इस टॉपिक की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है ना कि भाई हम क्राउड में खड़ा होना आसान मानते हैं, अकेले खड़े होने के लिए करेज लगता है। तो ये ह्यूमन नेचर का पार्ट है कि हम कन्वेंशंस को, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं,
हार्ड मेंटेलिटी को फॉलो करता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस एस्से की, और यहीं से मैंने फिर इसको स्टार्ट कर दिया। बट वाई इज इट सो, क्यों ऐसा क्यों है? सो दिस बिकेम माई फर्स्ट डायमेंशन। तो इसका पहला रीजन सर ये है, इसका अनदर रीजन ये है, और फिर मैंने यहीं से अगला रिलेट कर दिया कि एक रिस्क के साथ आता है, तो वो क्या रिस्क है। दिस इज हाउ द एस्से फ्लोज। और क्या रिस्क है? अब इसका कोई सॉल्यूशन भी है क्या? इज देयर अ सॉल्यूशन? यस देयर इज अ सॉल्यूशन। समझ रहे हो किस तरीके से फ्लो पिरोया जा रहा है एस्से को? किसी को पढ़ना है तो मतलब मैं तो खैर चलो अच्छे एसेज नहीं लिखता हूँ, मेरे से तो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लिखते हैं, बट ये एक सिंपल सा एसे जो आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। तो इफ़ यू वांट इट आई कैन पोस्ट इट। ओके, ये 10-11 पेजेस का होगा। देन जैसे अगर आप देखोगे तो हाँ, जैसे यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया है। नाउ देखिए, यहाँ तक मैंने इसको पूरे को डिस्कस किया, ऐसे को डिस्कस किया। नाउ दीज आर माई एक्स्ट्रा पॉइंट्स जहां पे मुझे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे क्या है, बट इज करेज ऑलवेज अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स? क्या हमेशा ही आपको जाके क्राउड के अलग खड़ा हो जाना चाहिए? नहीं, हमेशा नहीं। अजमल कसाब भी तो बहुत करेजियस था शायद, है ना, अपने बॉम्ब बांध के आ गया था वो। तो क्या वो एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स है? नहीं, वो तो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। तो हमें राइट काइंड का करेज चाहिए। ये क्या आया? ये पहला एक्स्ट्रा डायमेंशन आया मेरे हिस्से में, कि मैं कुछ अलग, है ना, टॉपिक से रिलेटेड हूं, टॉपिक से नहीं हट रहा हूं, करेज, लेकिन एक्सपैंड, एनालिटिकल। देन कैसे डेवलप करें, है ना, कैसे डेवलप करें वो राइट काइंड का करेज। सो दिस इज अ सॉल्यूशन बेस्ड थिंग कि ठीक है आप करेज 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 तो कर रहे हो, लेकिन वो करेज होता कैसे डेवलप है। देन राइट काइंड का करेज कैसे डेवलप करें। अभी हमने करेज की बात करी थी जब, उससे पहले बोला ना हमने कि सब करेज कंस्ट्रक्टिव नहीं होते। तो राइट काइंड का करेज कैसे आएगा? तो यहां पे जो मैं बोल रहा था कि कुछ एथिकल आप लिख सकते हैं क्या, कुछ पर्सनल आप लिख सकते हैं क्या, कुछ इंडिविजुअल बेस आप लिख सकते हैं क्या। देन जो मैं बोल रहा था कि अब देखो कि कौन सी चीजों में आपको करेज चाहिए। देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ एरिनाज वेयर वी नीड टू बी करेजियस पीपल, where we need more courageous people to stand along with perseverance and solve issues. एनवायरमेंट में, क्लाइमेट में, पेट्रियार्की में, इक्वालिटी में। तो लेट्स नॉट वेट फॉर हीरोज, लेट्स बी वन। लेट्स courageously stand not just for global peace and greater in societies but also against our own demons, our own demons। आया ना ये जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक कुछ लेके आ सकते हो क्या। लेट्स courageously build a world that has not been broken into fragments, where the minds are without fear and the heads are held high। और फिर लास्ट में इसको कंक्लूड कर दिया विद इनविक्टस, अ वेरी जनरल कंक्लूजन इसमें बहुत अच्छा हो सकता है। और तो ऐसे करके आप इस हिस्से को अपने को देख सकते हैं, इस हिस्से को समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैंने अलग 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 चीज़ें करी है। तो इंट्रो, पोस्ट इंट्रो, सब समझ में आ गया आपको? ओके, क्लियर? कहाँ गया वो? हाँ, ठीक है। तो पोस्ट इंट्रो कैसे करते हैं, दिस इज क्लियर नाउ। तो फिर थोड़ा सा अगर आपको बॉडी के बारे में और समझना है कुछ, तो वैसे तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि किस तरीके से बॉडी के अंदर आप बहुत सारे एनालिटिकल पॉइंट्स जनरेट करते हैं, आप क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके आंसर्स करते हैं, उनको आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनमें एग्जांपल्स कैसे लेके आते हैं। फिर आप ये वाला मेरे ऐसे पढ़ेंगे तो शायद समझ भी जाएंगे। कुछ और मैं टॉपर्स के 1-2 ऐसे आपसे आगे डिस्कस करूँगा भी ये चीज़ समझाने के लिए। लेकिन स्टिल अगर आपको समझना है कि बॉडी में आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगर जनरेट करने हैं, है ना, बिना ये साउंड के कि आप वो पेस्तल वेस्तल हो रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो जैसे एक टेम्पोरल होता है, मैं समझा रहा था आपको, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट एलपीजी, कंटेम्प्रेरी, है ना। देन एक होता है कि आप सर्किल का जो अप्रोच मैं बोलता हूँ कि पहले आप इंडिविजुअल से शुरू करिए, फिर आप फैमिली की बात करिए, फिर सोसाइटी की बात करिए, फिर कम्युनिटी की बात करिए, फिर एक नेशन की बात करिए, फिर पूरे ग्लोब की बात करिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये वाला ऐसे था कि करेज चाहिए अकेला खड़ा होने के लिए, एक इंडिविजुअल को कैसा करेज चाहिए, एक फैमिली को कब करेज चाहिए, सोसाइटी को कब करेज चाहिए, है ना। फैमिली को किसी, बताइए कोई एग्जांपल लिखिए, किसी फैमिली को कब करेज चाहिए। अंबेडकर साहब जब एजुकेशन पा रहे थे तो उनकी फैमिली को करेज लगा होगा ना, राइट। सोसाइटी को करेज लगता है टू एक्सेप्ट इट्स फॉल्ट, टू चेंज इट सेल्फ। जापान को देख लो, कितनी करेज है सोसाइटी, बिल्ड इट सेल्फ आफ्टर द न्यूक्लियर बॉम्बिंग। कंट्री को कब करेज लगता है, इंडिया को कब करेज लगा, जब उसे एलपीजी करना था, है ना। पूरी दुनिया, पूरी इंटरनेशनल ग्लोब को कब करेज लगेगा, जब उसे एनवायरमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, जब उसे ग्लोबल पीस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, जब उसे रशिया यूक्रेन वॉर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। सो दिस इज हाउ अगेन
एक डायमेंशन एक वो पकड़ा आपने और उस पर बहुत सारे, ये चीज़ें हेल्प करती हैं ब्रेनस्टॉर्म करने में। मैं ये चीज़ जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इनके बेसिस पे ऐसे लिखें। अगर कुछ नहीं और हो पा रहा है तो इसके बेसिस पे लिख सकते हो, लेकिन इनको ब्रेनस्टॉर्म करके आइडियाज़ जनरेट करो एंड देन उन आइडियाज़ को आर्ग्यूमेंट्स में पिरो के अपने ऐसे में डालो, देखो क्या मार्क्स मिलेंगे। लेट योर आइडियाज़ फ्लो। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। देन ऐसे आप और भी मतलब अपने अपने खुद के बना सकते हैं, जैसे एक होता है कास्ट, जेंडर, क्लास, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप कर सकते हैं, है ना। फिर एक वो तो चलता ही है पुराना सोशल इकोनॉमिक, ये वो। देन एक प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन अप्रोच होता है कि आपने एक प्रॉब्लम बताई, फिर अगले उसमें सॉल्यूशन बताया, फिर प्रॉब्लम फिर सॉल्यूशन, फिर प्रॉब्लम फिर सॉल्यूशन। तो एक ये वाला अप्रोच भी होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ अप्रोचेस दैट यू कैन फॉलो व्हाइल यू आर डूइंग दिस। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। ओके, क्लियर है। तो बॉडी में मुझे क्या क्या बताना था, डायमेंशंस बता दिए हैं। लेंथ तो वही है अभी कि आपका एक पेज मतलब 11 पेजेस टोटल हैं, तो 1 से 1.5 पेज में आपको इंट्रो लिखना है, ठीक है। देन आप सबसे पहले लास्ट में जाइए, आधे पेज में आपको कंक्लूजन लिखना है ना। आपको 1 से 1.5 पेज अगेन लगेगा पेन अल्टीमेट कंक्लूजन लिखने के लिए। तो 2 यहाँ हो गए, 1.5 यहाँ हो गए, तो 3.5 पेजेस के आसपास आपके ख़त्म हो गए। टोटल आपके 10.5-11 पेजेस हैं, तो अब इसको पूरे को आपको 7 पेजेस के आसपास में ख़त्म करना है। 7 में से भी 1 पेज आपका चला जाएगा उसमें, या आधा पेज चला जाएगा जो काउंटर व्यू लिखते हैं, है ना, ऐसे कुछ में। तो आपके पास 6 पेजेस बचेंगे। तो 6 पेजेस में मान लो आप हर पेज में 2 पैराग्राफ डाल रहे हो, तो लगभग 12 डायमेंशंस आपको सोचनी है। तो समझ रहे हो ना, एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, इसको भी फॉलो कर लोगे तो भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। अपना तो बना ही सकते हो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि आपको बैठ के बता दूँ कि आपको यही करना है, नहीं। कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से बैक ट्रैक करके अपने दिमाग में रखता हूँ कि मुझे कब क्या कहाँ खत्म करना है। सो दिस इज समथिंग जो लेंथ के हिसाब से चलता है। तो मैं एक पेज पे 2 पैराग्राफ लिखता हूँ, हिसाब से चलता हूँ। एग्जाम्पल कैसे डाइवर्सिफाई करने मैंने बता दिया। देन हाँ, जैसे कनेक्टिव्स होता है, एक चीज़ होता है कनेक्टिव्स। तो कनेक्टिव्स क्या होते हैं, कनेक्टिव्स के 2-3 तरीके होते हैं। हाँ, कनेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। तो ये ना फ्लो मेंटेन करने में थोड़ा हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ लिखा, यू एंडेड अप राइटिंग 1 पैराग्राफ, इसके स्टार्टिंग में आपने मान लो फर्स्टली लिख दिया, है ना। देन सेकंड में आप सेकंडली लिख दो। दिस इज़ अ वेरी नाइव वे, ये नहीं करना चाहिए, बट एक तरीका है ये। इसका और अच्छा तरीका क्या है कि मान लो आपने एक पर्टिकुलर डायमेंशन डिस्कस किया, अगले की स्टार्टिंग में सिमिलरली लिख दिया, सिमिलरली दिस डायमेंशन ऑल्सो, या फिर ऑल्सो व्हेन वी लुक एट अनदर पर्सपेक्टिव, ऐसे करके। देन एक मेरे वाला तरीका है जो मैंने फॉलो कर रखा है इसमें, अगर आप देखेंगे तो, कि मैंने हर पैराग्राफ के लास्ट में कुछ अगले पैराग्राफ के लिए फोल्डर छोड़ रखा है ना। देखिए जैसे यहां से देखिए, बट वाई इज इट सो, बट अरे यार एक सेकेंड, हाँ, बट वाई इज इट सो। तो इसका अगले इसमें क्या आ गया कि पहला रीजन ये है ना, अनदर रीजन ये है। इसके लास्ट में मैंने क्या डाल दिया दोबारा से, बट दिस बिहेवियर ऑफ स्टैंडिंग इन द क्राउड कम्स विद अ रिस्क। तो द रिस्क इज दिस, तो ये रिलेट हो गया, है ना, फ्लो बरकरार रहा। एग्जामिनर को पढ़ने में ऐसा लगेगा कुछ अब्रप्ट चल रहा है। अनदर रिस्क ऑफ स्टैंडिंग, अभी एक रिस्क की बात करी थी, अब दूसरे रिस्क की बात कर ली, बट क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, हाँ इसका एक सॉल्यूशन है। तो अगेन रिलेट हो गया ना, पैराग्राफ रिलेशन बन रहा है। देन बीच में मैंने ये थोड़ा क्रिएटिवली एक पोएम बनाई थी, तो वो लिख रखी है ना। बट वाई डज इट नीड करेज टू स्टैंड अलोन। अब ये मेरा एक नया डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले मैंने एक पोएम मेंशन कर दी ताकि फ्लो टूटा हुआ ना लगे। वाई डज इट नीड टू करेज टू स्टैंड अलोन, तो एक डायमेंशन एक पैराग्राफ में इसको एड्रेस किया। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि एक पैराग्राफ अगर एक चीज को एड्रेस करेगा तो इट विल लुक वेरी इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट इन इट्स एक्सप्रेशंस। ओके, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट द हार्डशिप्स। तो पहले इसमें मैंने हार्डशिप्स की बात करी होगी कहीं ना कहीं, हाँ देखो, है ना। तो अगले से मैंने रिलेट किया कि सिर्फ हार्डशिप्स की बात नहीं है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन वगैरह की भी बात है। जापान का एग्जाम्पल दिया, कैसे क्या किया, ठीक है। फिर जैसे मुझे आगे शुरू करना था कि हाँ इसके रिस्क तो हैं, जैसे मैंने ये रिस्क वाला टॉपिक खत्म कर लिया ना पीछे, तो हाँ इसके रिस्क तो हैं, लेकिन अगर अकेले खड़े होते तो कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द रिवॉर्ड्स। तो जैसे पहले मैंने फुलफिलमेंट की बात कर ली ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात कर ली, तो नाउ आई स्टार्ट विद दिस अलोंग विद फुलफिलमेंट। तो क्या हुआ, कनेक्ट हो गया, है ना, कनेक्टिव हो गया ये। तो कितना आसान तरीका है ये करने का, है ना। फिर जैसे मैंने यहाँ पे किसी इंडिविजुअल के लिए बात करी कि एक इंडिविजुअल को रिकॉग्निशन मिलता है, एक इंडिविजुअल को मीडियोक्रिटी और नॉमिनिटी उसकी खत्म हो जाती है, तो अगले में बोल दिया कि जो बेनिफिट है वो सिर्फ इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं है, आप दूसरों को इंस्पायर करते हो, दूसरों को ड्रीम देखना सिखाते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। फिर बट इज करेज ऑलवेज सो ग्लोरीफाइंग। अभी तक हमने ग्लोरीफाइकेशन पढ़ा उसका, लेकिन हमेशा ग्लोरीफाइंग है क्या, नहीं, हर चीज़ ग्लोरीफाइंग नहीं होती है। आप अपने कमरे में बैठ के अपनी बुक्स के बीच में बैठ के जूझ रहे हो, कमर दर्द हो रही है फिर भी जूझ रहे हो, ये ग्लोरीफाइंग थोड़ी है करेज। अकेले में कर रहे हो ना, बंद दरवाजों के पीछे करेज हो रहा है।
करेक्ट? तो इस तरीके से यू कैन टॉक अबाउट इट, ऐसे करके यू गो अबाउट इट। समझ में आया? दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल एग्जाम्पल। आप मेरे से 10 गुना 100 गुना बेटर लिख सकते हैं, तो राइट वेरी मीडियोकर एसेज, आप मेरे से बहुत अच्छा लिख सकते हैं। सो दिस इज अगेन अ पॉइंट। ओके, देन मैंने ये बता दिया आपको, फ्रेमवर्क बता दिया, प्रेजेंटेशन। हाँ, प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, जैसे आप एक पैराग्राफ खत्म करते हैं, है ना, एक पैराग्राफ आपने खत्म किया तो यहाँ पे कोट डाल देते हैं आप ब्लैक में या फिर बोल्ड में, मतलब कैपिटल्स में। तो ऐसे करके एक कोड डाल देते हैं तो वो थोड़ा सा लाइक ऐसे प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा अच्छा हो जाता है। या फिर एक तरीका होता है हेडिंग्स का, तो आप कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी हेडिंग्स अगर डाल सकते हैं अपने एस्से में तो वो भी बहुत हेल्प करता है ना। जैसे सपोज करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, तो आपने एक जगह डाला विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, दूसरी हेडिंग बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डबल एज्ड सॉर्ड, तो ऐसे करके क्या हुआ, यू एंडेड अप गिविंग टू गुड हेडिंग्स, है ना। जैसे मान लीजिए हम वो काम और स्टॉर्म वाले ऐसे डिस्कस कर रहे थे ना, कि समथिंग्स, कुछ चीज़ें आप काम में सीखते हैं, कुछ स्टॉर्म में सीखते हैं, तो लर्निंग इन काम एंड इन स्टॉर्म, और उसके आगे क्या लिखेंगे आप, अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। तो यहाँ पे अब आप दिखाएंगे कि कैसे कुछ लोग काम में सीखते हैं, कुछ लोग स्टॉर्म में सीखते हैं। फिर इसका मान लो आपको एक दूसरा ओपिनियन देना है, लर्निंग एट ऑल टाइम्स, है ना, कि काम हो या कुछ भी हो, टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। काम हो या कुछ भी हो, ये जैसे लास्ट में अगर आप देंगे, काम हो स्टॉर्म हो कुछ भी, आपको तो सीखना ही है, लर्निंग एट ऑल टाइम्स एंड टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। तो ये भी एक क्या हो गया आपका, एक तरीके की हेडिंग हो गई। तो इस तरीके से भी आप अपने प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं हेडिंग्स नहीं देता हूँ, आपने देखा ना मेरे ऐसे में मैं हेडिंग्स नहीं देता हूँ, मैं एग्जामिनेशन में भी नहीं देके आया हूँ, इट्स कंप्लीटली अप टू इफ यू वांट टू डू दैट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस। देन पेस्टल और एनालिसिस वाला मैंने डिस्कस कर दिया आपसे, पेनल्टीमेट कंक्लूजन डिस्कस कर दिया है मैंने आपसे, कि पेनल्टीमेट कंक्लूजन में क्या करते हैं, थोड़ा सा विजन देते हैं, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन देते हैं, थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देते हैं, थोड़े कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया तो उसके सॉल्यूशन दे देते हैं। देन लास्ट में कंक्लूजन में क्या करते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, है ना। सम मतलब अब आपको अपना ऐसे को कंक्लूड करना है ना, लास्ट में लेके जाना है, तो थोड़ा बड़ा फ्यूचर का विजन, थोड़ा एक अच्छा, एक हाई, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू, तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। इसमें आप कोई कोट दें, आप सिंपली एंड करें, दैट्स अप टू, दैट्स कंप्लीटली अप टू, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई पोइट्री दे सकते हैं आप, जैसे मैं पोइट्री दे के आता हूँ। अच्छा, एक जो हमने डिस्कस नहीं किया कि इंट्रो जो है वो पोइट्री बेस्ड भी होते हैं। ओके, मेरे को यहाँ अभी मेरा ऐसे दिखेगा नहीं, मैंने निकाल के नहीं रखा है, बट देर आर पोइट्री बेस्ड एसेज। मैं 2021 के अपने मेंस में एक ऐसे को पोएम से ही स्टार्ट करके आया था, ऑन द स्पॉट बना के। सो दैट्स कंप्लीटली ओके इफ यू आर डूइंग दिस, कंप्लीटली ओके, इट इज़ इनकरेज। जैसे अगर आप देखोगे ना तो इसमें आपको दिखेंगे एक दो अच्छे पोएम्स हैं, कहाँ गया वो, जैसे इसमें एक दो अच्छी पोएम्स हैं तो जो आपको ना डायरेक्टली ऐसे यूज़ किए जा सकते हैं। इफ़ इट्स विजिबल देन आई विल शो यू। हाँ, जैसे ये वाला है, हाँ, जैसे देखो मैंने स्टार बना के लिखा भी है क्योंकि मेरे को काफ़ी पसंद आई थी। तो अगर मैं वाटर वगैरह पे कहीं कुछ लिख रहा होता तो मैं डाल देता इसको। सी जस्ट रीड इट, वन डे समवन डग अप अ 20th सेंचुरी सिटी एंड एंड्स ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, हियर इज एन इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शन। क्या बोल रहा है कि एक बार ये जो हमारी 20वीं शताब्दी थी, इसकी कोई सिटी को डग किया गया और उसमें एक इंस्क्रिप्शन मिला, बहुत इंटरेस्टिंग था। क्या था उसमें, दिस वाटर टैप इज ओपन टू ऑल कास्ट्स एंड रिलीजन्स। What could it have meant? That this society was divided? That there were some were high while other were low? Well, all right, then this city deserved burying. Why did they call it the machine age? Seems like the stone age in 20th century. क्या beautiful poem है ना। अगर कास्ट पे रिलीजन पे ऐसा कुछ आ जाए, अच्छा वोटर वाली कोई और होगी, फिर कास्ट पे रिलीजन पे कुछ आ जाए, सोसाइटी कैसे चेंज होती है उस पर कुछ आ जाए, है ना, कैसे आपको इवॉल्व होना होता है विद टाइम, उस पर कुछ आ जाए, तो कितना ब्यूटीफुल पोएम है ना। जैसे वो है शिप और हार्बर वाली है ना, उसमें आप दिखा रहे हैं कि सोसाइटी के लिए टाइम है भाई कि हम रेस को, कास्ट को, रिलीजन को ख़त्म करें, नहीं तो आर सिटी डिजर्व्स टू बी बरीड। क्या स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड स्टेटमेंट है। तो ऐसे किसी पोएम के साथ, ऐसे किसी चीज़ के साथ यू कैन ऑलवेज स्टार्ट, दिस ऑलवेज फील्स गुड। जैसे कि ये वाला मेरे को बहुत पसंद था, इस पर देखो मैंने मार्क कर रखा है, इफ़ एन इम्पल्स कम्स टू से सम अनथॉटफुल वर्ड टुडे दैट men ड्राइव अ फ्रेंड अवे डोंट से इट, दैट मे ड्राइव अ फ्रेंड अवे डोंट से इट। अगर कोई भी ऐसा इंपल्सिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है जो आपके एक दोस्त को आपसे अलग कर सकता है, मत बोलो उसे। इफ़ यू हैव हर्ड अ वर्ड ऑफ ब्लेम कास्ट अपॉन योर नेबर्स नेम दैट मे इंजर हिज फेयर फेम डोंट टेल इट। thoughtful, kind, helpful speech. It's a promised gift to each. This is the lesson we should teach. Don't abuse it. तो वैन सोशल मीडिया के ऊपर मान लीजिए ऐसे आ रहा है ना, मीडिया एथिक्स के ऊपर ऐसे आ रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ऐसे आ रहा है, तो आप ऐसे पोएम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी है, ताकि लाइक वही मैं बोल रहा हूँ ना, हम इतने क्रिएटिव नहीं है कि ऑन द स्पॉट बैठ के सब कुछ सोच लें।
तो सम थिंग्स नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड. ओके, क्लियर. इनसे आप कंक्लूड भी कर सकते हैं, इनसे आप इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं. यू कैन डू दीज थिंग्स. ओके, अभी मेरे को लग रहा है कि ये काफ़ी लंबा हो गया है. आई वॉन्टेड टू डिस्कस एन एस्से विद यू. ये वाला एस्से मेरा मन था काफ़ी डिस्कस करने का. पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड. मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ. कर दूँ क्या? लाइक इट विल टेक 5 मिनट्स में भी. चलो ठीक है, कर देते हैं. ऋषभ भाई बोल रहे हैं कि कर दो, तो ऋषभ भाई की बात थोड़ी टालेंगे, तो कर ही देते हैं फिर. ओके, लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर एस्से. पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा आपको. पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है जी. अभी ये एक टॉपिक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. इट इज सेइंग कि पोइट्स जो होते हैं वो दुनिया भर के अनएक्नॉलेज, मतलब उनको एक्नॉलेज नहीं करता, लेजिस्लेटर होते हैं. वो लेजिस्लेटर कौन होते हैं? जो कानून बनाते हैं. ये बेसिक टॉपिक है. अब इसको समझो. ठीक है, सब कुछ छोड़ो, जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. पोइट कौन होता है? हु इज़ अ पोइट? इज अ पोइट सिंपली अ पर्सन हु इज डूइंग शायरी? Is a poet simply a person who is doing ghazal? In the case of essay, it is not. A poet is a person who can vision, who can show what actually is going on in the society, जो फेस दिखा सके सोसाइटी का. तो अगर कोई इंसान अपने पेंटिंग से दिखा रहा है तो वो भी एक पोइट है. अगर कोई इंसान अपनी शायरी से दिखा रहा है तो वो तो एक पोइट है. अगर कोई इंसान अपने गानों से दिखा रहा है तो वो पोइट है. अगर कोई इंसान अपने सिनेमा से दिखा रहा है तो एक पोइट है. अगर कोई इंसान अपनी कॉमेडी से दिखा रहा है तो एक पोइट है. Anybody who can show the true picture of the society at a given point of time is a poet through his or her art. तो अगर कोई बहुत अच्छी मूवी बना रहा है, कोई बहुत अच्छा सिनेमा बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल गे राइट्स की बात हो रही थी, है ना, LGBT कम्युनिटी के राइट्स की बात हो रही थी, तो यूट्यूबर सामने आए, उन्होंने कंटेंट बनाया, लोग सामने आए, उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, रेनबो पेंटिंग्स बनाई. दे पेंटेड देयर हाउसेज इन अ रेनबो कलर्स. दे सपोर्टेड द रेनबो मूवमेंट. ये लोग क्या हैं? ये पेंटर्स, ये कॉमिक्स, ये यूट्यूबर्स, दे आर द पोएट्स. इनकी वजह से हमने देखा कि लेजिस्लेशंस बदले हैं वर्ल्ड वाइड. इनको उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा कभी. एक्नॉलेजमेंट सरकार का रह जाएगा, एक्नॉलेजमेंट उस पार्लियामेंट का रह जाएगा जिसने कानून बदला. लेकिन बदला तो इनकी वजह से गया ना. एक बात सोचिए, क्यों ऐसा था कि हर एक राजा के दरबार में नवरत्न होते थे? वो नवरत्न क्या है? वो सब पोएट हैं. वो दिखा रहे हैं कि सोसाइटी किस तरीके की है. क्यों अकबर को क्रेडिट दिया जाता है 1000 टाइम्स ओवर दीन इलाही के लिए? कहां से आया वो उन सूफी संत से आया जिनसे वो प्रभावित था. तो उनका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा कभी भी. लेकिन आइडियाज उनके हैं. क्यों है? क्यों? वाई सो? बिकॉज दे जनरेट आइडियाज, बिकॉज दे शो द रियल पिक्चर. अगर राजा राम मोहन रॉय सामने आके एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं भारत की जिसमें सती प्रथा है, तो वो क्या है? वो एक पोएट है. अगर ईश्वरचंद विद्यासागर एक इमेज दिखा रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, एसेज लिख रहे हैं विडो रीमैरिज के ऊपर, जिसकी वजह से बाद में जाके विडो रीमैरिज एक्ट पास हो रहा है, तो वो उसका पास करने का हो सकता है कि जो क्रेडिट है वो चला जाए ब्रिटिश सरकार को. लेकिन वो अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर कौन है? वो ईश्वरचंद विद्यासागर जी हैं. गांधी तो कभी पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठे, लेकिन उस दिन उनके आइडियल्स जो है वो भरे पड़े हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी में, हर जगह गांधीयन आइडियल्स, गांधीयन आइडियल्स, गांधीयन आइडियल्स. क्यों? क्योंकि वो एक विजनरी हैं, क्योंकि वो सोसाइटी को पिक्चर दिखाते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे इस टॉपिक में पोइट इज नॉट जस्ट अ शायर. शायरी भी है. जब 15 अगस्त के रात से पहले रात को जब एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ करता था, अभी तो पता नहीं होता है नहीं होता है, लाल किले पे, तो पंडित जी चढ़ रहे थे, जवाहरलाल नेहरू साहब. तो चढ़ते चढ़ते उनका पैर डगमगाया. गिरने को उनके जस्ट पीछे राष्ट्र कवि थे दिनकर साहब, रामधारी सिंह दिनकर. व्हाट अ पर्सनैलिटी, वन ऑफ माई फेवरेट पोइट्स ऑफ ऑल टाइम. तो जब वो उनका कदम डगमगाए जवाहरलाल नेहरू के, तो वो गिरने को हुए, तो रामधारी सिंह दिनकर ने उनको संभाल लिया. तो नेहरू ने पीछे मुड़ के देखा, कहा कि दिनकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गिरते हुए को संभाल लिया. दिनकर साहब ने अपनी वही जो एक वो सटायरिकल से स्माइल है उसमें देखा नेहरू को और बोला कि कोई बात नहीं पंडित जी, जब जब राजनीति डगमगाई है कवियों ने ही संभाला है.
पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। अरे हम तो उस कल्चर को बिलोंग करते हैं जहां पे राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाता है भाई। तो इस ऐसे को लोगों ने ये सोच के नहीं लिखा कि ये टफ है, मेरे को कहां से इतनी पोइट्रीज, कहां से इतनी पोइम्स याद आएंगी, कहां से इतने पोइट्स के बारे में याद आएगा। नहीं, दिस essay talks about every individual who can represent himself, who can represent the society, who can represent ideas, who can show the real picture. तो सोचो, हमेशा से सोचो, कब से क्या क्या चलता आ रहा है एंशिएंट टाइम से। देखते रहो ना ऐसे लोगों को आप। छोटे 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 लोग हैं सोसाइटी में आज, मतलब बिल्कुल रिसेंट तक। अभी कब आएगा मैरिटल रेप का लो? तब तक नहीं आएगा जब तक ये पब्लिक डिस्कोर्स नहीं बन जाएगा। ऐसे ही पिसते रहेंगे हम। यही प्रिमिटिव सोच रहेगी हमारी कि वाइफ जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। मैरिटल रेप का लो आएगा नहीं जब तक लोग उस पर बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक कि जो पोइट्स हैं वो अपने पोएट्री में उसको लेके नहीं आएंगे, जब तक जो कंटेंट क्रिएटर है वो उस कंटेंट पर लेके नहीं आएंगे, जब तक इस चीज़ के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनेगी, जब तक इस चीज़ के ऊपर मूवमेंट्स नहीं चलेगी, मैरिटल रेप का लॉ पास होगा ही नहीं। एक्नॉलेजमेंट तो सरकार को मिलेगा, अरे भाजपा ने मैरिटल रेप के अगेंस्ट लॉ पास किया, देखो कितनी विमेन ओरिएंटेड सरकार है। गुड होगी, लेकिन किसको मिलना चाहिए श्रेय? एक्चुअली में कौन है जो अनएक्नॉलेज्ड रह गया? द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करो, ऐसे सोचो, ऐसे इंटरप्रेट करो, टेक दैट क्रिएटिव लिबर्टी, टेक दैट प्लंज। बहुत ही ब्यूटीफुल पेपर है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। मत पढ़ो ये डर में और इस चक्कर में कि आप लिख नहीं सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो। यू जस्ट नीड टू सिट एंड थिंक। आएंगे आइडियाज। देखो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे अभी कानून बन नहीं रहे हैं, लेकिन तब बनेंगे जब वो पब्लिक डिस्कोर्स का पार्ट बन जाएगा, जब वो पेंटिंग्स में आ जाएगा, जब लोग अपने डांस के थ्रू उसको दिखाने लगेंगे, जब सटायरिकल कॉमिक उन पर सटायर करने लगेंगे। सोचो ऐसे टॉपिक्स के बारे में। मेंशन करो अपने एस्से के लास्ट में ये चीज़ कि अभी पोएट्स के सामने ये है, ये डायमेंशंस हैं, ये चीज़ें हैं कि वो इन चीज़ों को उठाए। जिस दिन वो उसका पार्ट बन जाएगा, यू आर सॉर्टेड। तो सोचिए हमेशा, थिंक ओवर दीज थिंग्स। ठीक है, ये ऐसे मे बी मैं दोबारा आपसे डिस्कस करूँ और डिटेल में, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं आप। यू कैन जस्ट राइट दिस ऐसे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऐसे। अभी देखिए मैंने आपके लिए कितनी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दी है, तो आप कम से कम इसको लिख के देखिए। आई अंडरस्टैंड यूपीएससी के ग्रुप में सबमिट करिए, एक दूसरे के एसेज पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि कितने लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, कितने लोग सही से काम कर रहे हैं। आधे लोग तो यहाँ तक आए नहीं होंगे। कंपटीशन बहुत ही कम है आपका। दिस इज वॉट essay is all about. This is what essay is all about. It is not about getting a lot of data, a lot of facts and a lot of material. 500 पेजेस के मटेरियल दे रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। क्या ज़रूरत है आपको? आपके पास है, सब कुछ है, सोचना है बस। बैठ के सोचिए, पिकअप टॉपिक्स, थिंक ओवर देम, ट्राई टू इंटरप्रेट देम। करो तो हो जाएगा। नहीं है ये पेपर टफ, नहीं है ये ऐसे का पेपर टफ। बोलने दो लोगों को मार्केट में। आपको नहीं ज़रूरत है 8-10 हज़ार रुपये की टेस्ट सीरीज़ की यार, वो आपको हार्म कर रही हैं उल्टा। उनको कुछ नहीं पता है, उनको नहीं पता है कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, कुछ नहीं पता है। मैं दिखाऊंगा 9 तारीख की वीडियो में 100 चीज़ें ऐसी आपको। यू नीड टू टेक दैट वॉइस फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू टेक दैट स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू बी द करेजियस पर्सन। प्लीज़ जो सही गाइडेंस है उसमें प्रिपेयर करिए, सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करिए। डोंट गो फॉर पेड मिस गाइडेंस। एन एंड, दिस इज एन एंड टू द एरा ऑफ पेड मिस गाइडेंस। ऐसे में आज खत्म कर दिया है, बाकी जगह 9 जुलाई को खत्म कर देंगे। प्रॉमिस यू दिस। ठीक है, चलिए। For the time being, I hope this was helpful. All the documents can be accessed and understand UPSC's Telegram channel. Do join that. And if you've liked the video, then please hit the like button. Drop a comment telling us what was your favorite moment from the video. It really helps us to understand what you're feeling better. It helps us to connect with you. आप जानते भी हैं कि मैं तो
I keep on replying to all the comments. I react to all the comments because I like engaging with people. Do let us know what was the favorite moment from the video, and if you have found it useful, share it with your friends. Share it with the friends of state PSCs, share it with the friends of UPSC or further exams, and even with your family members you can do that, because हम कोई ऐसे अच्छी बात कर रहे हैं यार, अच्छी बात सिखा रहे हैं, तो it will help us reach to a wider audience. It will help YouTube to push this video further to a lot of people. And if you can, then do hit the subscribe button, because it will again help us reach to a lot of people. हमें पता चलेगा कि आपको हमारा काम पसंद आया है. ठीक है, मेरे से ज़्यादा चीज़ें बोली नहीं जाती है, तो आज फ्लो में बोल रहा हूँ, तो कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. Till we meet next time, I hope this was really helpful. Do let us know again in the comment section, and all the things can be accessed from that link in the description. Okay, for the time being, this is Satyam Jain signing off. Till we meet next time, to create a revolution, to create a ripple which will be so hard that it will shake the foundations of a market, an industry which is running on highly unethical terms.